السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیا حال احوال ہے، کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ اور جناب آپ کے لیے لے کر آئی ہوں وہ ناول، وہ ایپیسوڈ جس کا آپ کو رہتا ہے بے خبری سے انتظار، یعنی کہ لاسٹ ایپیسوڈ۔ جی ہاں جناب، آج اس ناول کی لاسٹ ایپیسوڈ ہے جو میرے حساب سے تو بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی۔ خیر وہ رائٹر کی مرضی ہے۔ بہرحال میں آپ سب کو یہ بتاتی ہوں کہ میں ناول جو ہے آپ سے پہلے نہیں پڑھتی بلکہ آپ سب کو سناتے ہوئے ہی پڑھتی ہوں۔ بس چند گھنٹوں کا فرق ہوتا ہے کہ ظاہر ہے جب میں ریکارڈ کرتی ہوں تب نیکسٹ ایپیسوڈ میں ریڈ کر لیتی ہوں اور آپ لوگوں کو نیکسٹ ڈے جا کر ملتی ہے شام تک، اتنا ہی فرق ہے۔ اگر میں آپ لوگوں سے پہلے ناول پڑھ لوں گی تو یقین کریں مجھے سناتے ہوئے بالکل مزہ نہیں آئے گا، میں بور ہو جاؤں گی، میری آواز میں وہ جوش و جذبہ، وہ اتار چڑھاؤ، وہ فیلنگز نہیں آتے ہیں اگر میں نے کہانی پہلے سے پڑھی ہوئی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ میں کوئی بھی کہانی جب چوز کرتی ہوں تو بس اس کا رائٹنگ سٹائل دیکھتی ہوں، تھوڑا سا شروع سے، تھوڑا سا کہیں درمیان سے، اور آخر جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ لازمی میں دیکھتی ہوں کہ کیا ہے کہانی کا، تو اس سے مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہانی شیئر کرنی چاہیے، یہ کوئی چرڈش سی کہانی نہیں ہے، میچورٹی سے لکھی گئی ہے، یا رائٹر کا نام ہی اکثر کافی ہوتا ہے کہ یہ فلاں رائٹر کی کہانیاں تو بہت اچھی ہوگی تو میں شیئر کرتی ہوں۔ ادروائز میں کیونکہ ناول پڑھتی نہیں ہوں تو اکثر جو ہے وہ ایسے سٹوریز بھی شیئر ہو جاتی ہیں جو ہمیں پسند نہیں آتی، لیکن وہ جب شروع ہو جاتی ہیں اور تقریباً کہانی کا ایک حصہ ہو جاتا ہے اور پھر آگے جا کے پتہ چلتا ہے کہ کہانی تو بور کرنے لگی ہے، تو پھر اس وقت ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے ادھورا، پھر اسے کمپلیٹ کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اکثر ایسے ناول بھی سننے پڑ جاتے ہیں جو کہ بالکل بھی اچھے اور معیاری نہیں ہوتے ہیں، لیکن میں کیا کروں کہ اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا۔ اور یقین کریں اگر میں ناول پہلے کمپلیٹ ریڈ کروں گی نا تو آپ انتظار ہی کرتے رہیں گے، کیونکہ ہر ناول جب میں کمپلیٹ ریڈ کر لوں گی تو مجھے لگے گا نہیں یار یار اسے نہیں شیئر کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، تو ایسا ہوگا کہ پھر میں ناول پڑھتی جاؤں گی، ریجیکٹ کرتی جاؤں گی، اور آپ لوگ انتظار میں ہی بیٹھے رہیں گے کہ جناب کب کوئی کہانی شروع کریں گی۔ اسی وجہ سے میں کوئی بھی کہانی مکمل ریڈ نہیں کرتی۔ خیر باتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، کہانی پر تبصرہ ہم کہانی کے آخر میں کریں گے۔ بڑھتے ہیں اب لاسٹ ایپیسوڈ کی جانب۔ تو جناب اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل نے۔ ناول کا نام ہے کوسے قضا کے رنگ، مصنفہ ہے فاطمہ لغاری۔ لاسٹ ایپیسوڈ۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا تھا، اس کے ساتھیوں کی آہو بکا اس کے کانوں میں گرم سیسا انڈیل رہی تھی۔ خون سے رنگین فرش پر کئی زخمی کراہ رہے تھے، کچھ ساتھی بھاگ بھاگ کر ان کی پٹیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ایک ہفتے سے وہ اس چوکی کو دشمن سے بچانے کی تگ و دو میں تھے، ان کے آدھے ساتھی جاں بحق ہو چکے تھے، کچھ زخمی تھے، صرف 3 سے 4 ساتھی مزید لڑنے کی سکت رکھتے تھے، ان میں وہ بھی شامل تھا۔ مدد کے لیے انہوں نے ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کیا تھا۔ شہریار کچھ فاصلے پر دوسری چوکی سے ان کے لیے مدد لا رہا تھا، مگر دشمن کے تنگ گھیرے کی وجہ سے اس کا وہاں سے نکلنا مشکل تھا۔ وہ سب اس وقت موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے تھے۔ بات اگر صرف ان کی اپنی موت کی ہوتی تو ٹھیک تھا، مگر بات ان کے ساتھیوں کی تھی۔ ہر روز وہ ایک نئے شہید کو دفنا رہے تھے۔ آج بھی ان کے 5 ساتھی شہید ہوئے تھے، 3 زخمی تھے، گنتی کے وہ 7 لوگ زندہ تھے۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا تھا جب اچانک فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ سب چونک کر سیدھے ہوئے، وہ تیزی سے اٹھا۔ دشمن نے حملہ کر دیا ہے، حسان کی اطلاع پر سب نے فوراً ہتھیار اٹھائے تھے۔ فائرنگ کی آوازیں قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھیں، وہ سب بھی جوابی فائرنگ کرنے لگے۔ خاموش فضا اچانک چیخ اٹھی تھی، خون تیزی سے زمین پر گرنے لگا۔ ان کے ساتھی آگے بڑھ بڑھ کر شہید ہو رہے تھے، قیامت برپا تھی۔ آریان نے نظریں ترچھی کر کے اپنے برابر میں دیکھا، وہ صرف 3 لوگ بچے تھے، صرف 3۔ ہم اس چوکی کو دشمن کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ سب نے سر کو جنبش دی، پھر نعرہ تکبیر بلند کر کے آگے بڑھے۔ باہر نکلتے ہی انہوں نے رائفلوں کے فائر کھول دیے۔ حسان، آریان اور ان کے برابر میں طلحہ۔ ایک گولی طلحہ کی طرف پڑی تھی اور اس کے سر کو چیرتی ہوئی نکلی تھی۔ خون کا فوارہ بلند ہوا تھا، درد کی ایک لہر ان دونوں کے جسموں میں دوڑ گئی تھی۔ اگلا نشانہ آریان پر باندھا گیا تھا۔ آریان! حسان چلاتا ہوا اس کے آگے آیا تھا۔ دشمن کی پستول سے نکلی وہ ایک ہی گولی تھی جس نے ان دونوں کے سینوں کو چیرا تھا۔ وطن کے ساتھ ساتھ دوستی کا حق بھی ادا ہو گیا تھا۔ یکے بعد دیگرے کئی گولیاں ان کے جسموں میں پیوست ہوئی تھیں، دونوں ایک ساتھ زمین بوس ہوئے تھے۔ آنکھوں میں نمی تھی، لبوں پر کلمہ شہادت تھا، چہرے خون آلود ہوئے تھے، اور اس سے زیادہ دل کو چیر دینے والا منظر وہ تھا جب ان کے پرچم کو اتار کر چوکی پر دشمن کا پرچم لہرایا تھا۔ کاش وہ یہ منظر نہ دیکھ پاتے، کاش۔ دعا ہے جو گولی تمہیں چیرے وہ میری سانسوں کی ڈور بھی کاٹ دے، شہادت بھی مل جائے اور دوستی کا حق بھی ادا ہو جائے۔ زندگی میں تم سا مخلص دوست میں نے کسی کو نہیں پایا۔
हमारा जीना मरना साथ होगा, इसी वतन के लिए जान देंगे और साथ देंगे, गिरेंगे भी साथ और उठेंगे भी साथ, फिर रब के हजूर एक साथ पेश होंगे, एक ही परचम में लिपटे हुए। वो दोनों नम आंखों से मुस्कुराते हुए एक दूसरे के गले लगे थे। सुनो, मुझसे आगे बढ़ने की कोशिश मत करना, दोस्ती में बराबरी होती है। अगर मुझे कभी किसी गोली की जद में देखो तो मेरे पीछे खड़े हो जाना, पुश्त पर पुश्त टिकाए, कंधे से कंधा मिलाए हम साथ लड़ेंगे। मेरी दुआ है मैं अपनी जिंदगी में कभी तुम्हें गिरता ना देखूं। मैं ये नहीं कहूंगा मेरी उम्र भी तुम्हें लग जाए, बस इतनी सी आरज़ू है कि तुम्हारे जनाजे के साथ अगर किसी का जनाजा हो तो वो मेरा हो, और लोग नम आंखों से मुस्कुराते हुए कहें कि यारों का याराना है, मौत भी उन्हें जुदा ना कर सकी। हम जिए भी साथ, हम मरेंगे भी साथ। शहरयार साकत खड़ा उन दोनों को देख रहा था, आंखों में नमी पिघलने लगी। आज दोस्ती का हक अदा हो गया था। वो दोनों साथ साथ कंधे से कंधा मिलाए हुए थे। सब्ज वर्दी में मलबूस पाक वतन के नौजवान जामनी आसमान तले आंखें मूंदे लेटे थे। चेहरे पर लगा खून उनकी जानिसारी का गवाह था। तुम दोनों ने हमेशा की तरह मुझे अलग कर दिया, तुम दोनों बाजी ले गए यार। आंखों से एक आंसू लुढ़कता हुआ नीचे गिरा। जामनी आसमान ने थक कर पानी का एक कतरा जमीन पर गिराया और फिर एक के बाद दीगरे पानी के कई कतरे जमीन को भिगोते गए। शहीदों का खून धोने के लिए आसमान बरस रहा था। आंखों से गिरते आंसुओं और आसमान से गिरते पानी में फर्क मिटता गया। तेज बारिश का शोर बढ़ता गया। वो ऑफिस में बैठा अगले लेक्चर की तैयारी कर रहा था जब मेज पर रखा मोबाइल बज उठा। उसने मोबाइल उठाकर कान से लगाया। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। उसने हैरत से सामने देखा, फिर तेजी से मोबाइल हाथ में पकड़ता मेज से गाड़ी की चाबी उठाता बाहर की तरफ लपका। मुख्तलिफ क्लासों से गुजरते हुए वो उसकी क्लास में आया। उर्वा, क्लास में लेक्चर देते प्रोफेसर ने मुड़कर उसे देखा। सबकी नजरें दरवाजे पर खड़े अयाद पर टिकी जो उर्वा को तलाश कर रहा था। वो पिछली कतार में बैठी थी। प्रोफेसर, मिस उर्वा को इमरजेंसी में घर जाना है, नहीं इजाजत दें। प्रोफेसर ने उसकी बात समझकर सर हिला दिया। उर्वा मतजब्जब से उसे देखती बैग कंधों पर लटकाए बाहर आई। आदि, क्या हुआ है? घर में सब ठीक है? उसके परेशानी से पूछने पर अयाद ने नफी में सर हिलाया। आर्यन। वो क्लास में बैठा था जब उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आया। माथे पर बल डाले उसने मैसेज पढ़ा। आंखों में हैरत उभरी। चंद लम्हे लिए थे उसने बात समझने में, और कुछ देर बाद वो अनादिया का हाथ पकड़े यूनिवर्सिटी से बाहर निकल रहा था। कराची से इस्लामाबाद की तरफ परवाज भरने वाली पहली फ्लाइट में वो सब थे। एहतशाम, साले, मिनाल, अनीसा, यहिया और अनाबिया। रहीम यार खान से इस्लामाबाद वाली सड़क पर मौजूद गाड़ियों में से एक गाड़ी में वो भी थे। अनफाल, इबाद, नूरुल ऐन, इब्राहिम। हवेली में यक्के बाद दीगरे कई गाड़ियां आकर रुकी थी। दिलों में किसी को खोने का खौफ लिए सब अंदर की तरफ पड़े थे। सब ठीक में जो ठीक नहीं था, उसके ठीक ना होने पर कुछ भी ठीक नहीं रहा था। वो आर्यन अहमद था, इस हवेली का लाडला पोता। वो ठीक नहीं था तो कुछ ठीक नहीं था, और अगर वो ठीक नहीं होने वाला था तो इस हवेली में भी कुछ ठीक नहीं होना था, न आज न आइंदा। कुछ अरसे बाद इंसान क्या है? मिट्टी का एक पुतला, गोश्त का एक टुकड़ा, हड्डियों का एक ढांचा, बस। इंसानी जिस्म के अंदर जब रूह डाली जाती है, 9 माह तैयार होने के बाद जब इंसान इस दुनिया में आंख खोलता है तो खुद को किन के दरमियान पाता है? रिश्तों के, खूनी रिश्तों के, माँ बाप, बहन भाई। खुदगर्ज है वो इंसान जो इन रिश्तों को भुला दे, और खुशकिस्मत है वो इंसान जो इन रिश्तों के साथ जी ले। जिंदगी बहुत कम है, बहुत थोड़ी सी है, इसे मुकम्मल जीने का हक रखता है इंसान। थोड़े से वक्त में या खुशी के एक लम्हे में हम पूरी जिंदगी जीते हैं। हम कोसे कजा के रंगों जैसे लोग। नीलगों आसमान तले भीगी सड़क के दाएं तरफ कब्रिस्तान था। कब्रें सुबह से होने वाली हल्की हल्की बूंदाबांदी के जेर असर भीगी हुई थी। कब्रिस्तान के वस्त में चंद कब्रों के गिर्द वो सब मौजूद थे। कुछ बैठे थे, कुछ खड़े थे। कब्र की नम मिट्टी को छूते हुए यूशा ने नजर उठाकर सामने देखा। कब्र की तख्ती पर अरमगान लगारी लिखा था। वह नम आंखों से उस नाम को देखे गए। उस कब्र के बराबर में एक और कब्र थी जिसकी तख्ती पर आर्यान लगारी लिखा था। कब्र के सिरहाने खड़े इबाद और इब्राहिम के हाथ फातिहा के लिए उठे हुए थे। उन सबसे जरा फासले पर एक कब्र के पहलू में हारिस और यूसुफ बैठे थे, धीरे से मिट्टी की नमी को महसूस करते, आंखों में पिघलती नमी को पीछे धकेलते। आप इतनी जल्दी ना करते अरसलान अफंदी साहब। हारिस की आवाज में बारिश की सी नमी थी। वापस अरमगान की कब्र की तरफ आया जाए तो वो सब अब जाने की तैयारियों में थे। यूशा, फुरकान और याहिया के हमरा हारिस और यूसुफ का इंतजार कर रहे थे। इबाद इब्राहिम का हाथ थामे साले, एहतशाम, आबान, उसामा और हादी के साथ कब्रिस्तान से बाहर निकल रहा था। बाबा, इस कब्र पर आर्यन लगारी क्यों लिखा था? इब्राहिम ने सर उठाकर उसे देखते हुए सवाल किया।
کیونکہ اس قبر میں جو رہتے ہیں ان کا نام آریان لغاری تھا۔ عباد نے دھیرے سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، مگر آریان چاچو تو اپنے گھر رہتے ہیں۔ اس نے معصومیت سے پلکیں چپکائیں۔ ان کے برابر میں چلتے ہادی نے بے اختیار زبان دانتوں میں دبائی۔ وہ قبر آپ کی دادی کے دادا کی ہے، مطلب میرے نانا کے ابو کی۔ ان کا نام آریان تھا۔ جب آپ کی چاچو پیدا ہوئے تو نانا نے کہا میں ان کا نام اپنے بابا کے نام پر رکھوں گا، پھر ان کا نام آریان رکھ دیا۔ اس کے بعد نانی کی خواہش پر ان کے نام کے آگے احمد لگا دیا گیا، تو وہ قبر میرے نانا کے ابو کی تھی جن کا نام آریان لغاری تھا، لیکن آپ کے چاچو کا نام آریان احمد ہے۔ ٹھیک، عباد نے تفصیل بتائی۔ ابراہیم کو اس کی باتیں تھوڑی بہت سمجھ آئیں۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی، پھر اپنا بایاں ہاتھ ہادی کی طرف بڑھایا۔ خالو، ہم چاکلیٹ لینے چلیں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ آ جاؤ۔ وہ اسے ساتھ لیے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وہاں 3 گاڑیاں کھڑی تھی، ہادی، عباد، ابراہیم اور صالح ایک گاڑی میں، یوسف، یوشا، فرقان اور یحییٰ دوسری گاڑی میں، آبان، احتشام، اسامہ اور حارث تیسری گاڑی میں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ تینوں گاڑیاں آگے پیچھے سڑک پر پوری رفتار سے دوڑ رہی تھیں۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئی، ہاتھ میں مسلسل بجتے موبائل کو تھامے نظریں ارد گرد دوڑائیں۔ ہلکے نیلے رنگ کی کرتی میں ملبوس، شانے پر دوپٹہ ٹکائے، بالوں کو پیچھے سے کیچر میں مکید کیے، باقی بال کمر پر بکھیرے، آنکھوں پر چشمہ ٹکائے، وہ صوفے پر بیٹھی انادیہ کو دیکھ کر آگے بڑھی۔ کب سے کال کر رہے ہیں ہادی بھائی، اٹھا لو فون۔ اس نے موبائل اس کے کان سے لگایا۔ یار مہندی لگی ہوئی ہے، سوکھی نہیں ہے۔ اس نے منہ بسوڑتے ہوئے موبائل کندھے اور کان کے درمیان رکھا۔ جی جناب کہیں۔ عروہ مسکراتی ہوئی پلٹ چکی تھی۔ جناب کہاں تشریف فرما ہیں آپ؟ ہادی نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ ابھی مہندی لگوا کر ہٹی ہوں، آپ بعد میں کال کر لیں۔ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ پچھلے 2 دنوں سے ٹرکھا رہی ہو تم مجھے، ولیمے کے لیے آنا تم نے ادھر ہی ہے؟ اچھا اوکے، صبح ویسے بھی آ رہی ہوں گھر، ابھی میں فون بند کر رہی ہوں، صبح ملتے ہیں۔ اس نے فون دائیں ہاتھ سے پکڑ کر میز پر رکھا، دوسری طرف سے وہ اسے بلاتا ہی رہ گیا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر کچن کی طرف بڑھی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر شیلف کے پاس کھڑی عروہ پر ٹکی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ وہ کاؤنٹر پر چڑھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ آٹا گوندنے لگی ہوں، امی نے کہا تھا پھر رات کے کھانے کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ بالوں کو جوڑے میں باندھ چکی تھی اور اب آٹا نکالتے ہوئے کہہ رہی تھی، جلدی کر لو، پھر نورالعین اور الماس کو مہندی بھی لگانی ہے۔ میں نہیں لگا رہی، اب فضول میں ہاتھ خراب ہو رہے ہیں میرے، یونیورسٹی جانا ہے مجھے۔ اچھا، عروہ نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ یار پلیز نا، تم بھی لگا لو۔ محترمہ آپ کے ولیمے کے اگلے دن میری یونیورسٹی ہے، ولیمہ آپ کا ہے تو شوق سے لگوائیں، ویسے بھی ہادی بھائی مچل رہے ہیں۔ وہ ہلکا سا ہنس دی۔ اچھا جلدی سے کرو یہ اور فوراً آ جاؤ، شاباش۔ وہ جمپ لگا کر کاؤنٹر سے اتری، پھر باہر کی طرف بڑھی۔ عروہ نے مسکرا کر اسے دیکھا، پھر اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ صبح انادیہ اور ہادی کا ولیمہ تھا، اسے ابھی بہت سے کام کرنے تھے۔ سرخ رنگ کے فرش پر زرد رنگ کا بال پوری قوت سے ٹکرایا۔ خاموش فضا میں ایک لمحے کے لیے بال کے ٹکرانے کی آواز سنائی دی۔ وہ بال کو دونوں ہاتھوں میں لیے اوپر کو اٹھا، بائیں ہاتھ کی انگشتیں امانت میں پہنی پلاٹینم رنگ واضح ہوئی۔ پاؤں فرش سے اٹھ گئے، بال نیٹ سے ٹکرا کر واپس نیچے آیا اور فوراً سے پہلے حارث اسے پکڑ چکے تھے۔ وہ بال ان سے لینے کی تگ و دو میں تھا۔ حارث نے بال نیٹ سے گزارنی چاہی مگر وہ اسے پکڑ چکا تھا اور چکر کاٹتے ہوئے اس نے بال نیٹ سے گزار دی۔ وہ جوش سے اچھلا تھا۔ حارث نے گہری سانس لی تھی۔ کیا ہو، آبی جیت گئے، کرسیوں کے پاس بیٹھے عباد نے جوش سے دایاں بازو اٹھا کر کہا تھا۔ دائیں ہاتھ کی بند مٹھی سے چند پاپ کارن کی جھلک دکھائی دی تھی۔ حیات مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ سیاہ پینٹ شرٹ میں ملبوس بازوؤں کے کف مروڑے وہ اب جھک کر اس کی گود میں رکھے پاپ کارن اٹھا رہا تھا۔ آخری راؤنڈ باقی ہے برخوردار، حارث نے اسے یاد دلایا۔ اس نے سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ کوشش کرتے ہیں، شانے اچکا کر وہ ان کے روبرو آن کھڑا ہوا۔ حارث نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر بال زور سے فرش پر ماری۔ وہ تیزی سے بال کی طرف لپکا۔ عباد آگے ہو کر جوش سے انہیں دیکھنے لگا۔ حارث نے بال نیٹ سے گزار کر واپس پکڑ لی تھی۔ ایاد نے ان کے پیچھے سے آ کر بال کو پکڑا اور فوراً سے پہلے اچھل کر بال نیٹ سے گزار دی۔ حارث اسے گھور کر رہ گئے۔ وہ دونوں اب واپس بال کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ آبی بابا، آبی بابا، آبی بابا، آبی لاسٹ۔ اس نے آنکھیں سکیڑی۔ آبی جیت جائیں۔ اس نے آواز قدرے دھیمی رکھی۔ ایاد بال کو نیٹ سے گزارنے کے لیے آگے آیا۔ حارث نے بال تیزی سے اس سے لی۔ وہ بال کے پیچھے لپکا۔ 2 چکر کاٹ کر حارث نے بال نیٹ سے گزار دی۔ او نو، آبی آؤٹ۔ اس نے افسوس سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ ایاد نے آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کر کے پھر کھولی۔ لب دانتوں میں دبائے حارث کو دیکھا جو فخریہ کالر جھاڑ رہے تھے۔ باپ ہوں تمہارا، مسکراتے ہوئے کہا گیا۔ وہ پلٹ کر عباد کی طرف آیا۔
उसके बराबर में कुर्सी पर बैठा, फिर उसकी गोद में रखे पाप कान उठाए। फिर कोशिश करेंगे। वो ज़ेरे लब मुस्कुराया। आबी, आई फील सॉरी फॉर यू। इबाद ने मासूमियत से उसे देखा। ड्रामे कम किया करो ड्रामेबाज। इबाद ने दांत निकाले। वो दोनों भाई अब पॉपकॉर्न खा रहे थे। हारिस ने बास्केट में बाल डाली और किनारे पर लटकता अपना सुरमई कोट उठाकर बाजू में डाला। मुझे एक बहुत जरूरी काम से हवेली जाना है। तुम घर कब तक आओगे? बस थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। किस काम से जा रहे हैं आप? उसने मशकूक निगाहों से उन्हें देखा। तुम पॉपकॉर्न खाओ, मैं चला। एक मुस्कुराती निगाह उस पर डाली, फिर आगे बढ़कर लाड से इबाद के बाल बखेरे और बाहर की तरफ बढ़ गए। आधी खतरे की बू आ रही है। इबाद ने राजदाराना अंदाज में सरगोशी की। अयाद ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी, फिर अपना मोबाइल उठाया। कुछ नंबर मिलाकर उसने मोबाइल कान से लगाया। पता करते हैं। कुछ ही बेल के बाद कॉल उठा ली गई। आधी कोई जरूरी बात है तो जल्दी से करें, काम कर रही हूँ। उर्वा की आवाज उसकी समात से टकराई थी। क्या कर रही हो? आटा गूंद रही हूँ यार। वो मुस्कुराहट दबा गया। अफंदी साहब आ रहे हैं हवेली। आंखें और कान खुले रखना, गड़बड़ करने आ रहे हैं वो। नजरें सामने टिकाए उसने कहा था। बाबा पर शक बहुत करते हैं आप। इतने अच्छे से तो हैं वो। रखें अब फोन, अम्मी ने डांट देना है मुझे। अयाद ने गला खंगार कर इबाद को देखा। अच्छे तो वो वाकई हैं। उसे अपने हलक में मेंढक अटकते महसूस हुए थे। ठीक है, तुम काम करो। अफंदी साहब को मैं खुद देख लूंगा। आप आज सबके साथ क्यों नहीं आए? दोपहर को काम था थोड़ा, तभी नहीं आ सका। उसने उज़र पेश किया। ठीक है, खुदा हाफिज। उठो, अभी घर चले। अफंदी साहब के जरूरी काम का भी पता लग ही जाता है। वो उठ खड़ा हुआ, पाप कान हाथ में पकड़ते हुए वो भी उठा। अयाद ने अपना कोट पहना, बाजुओं के कफ दुरुस्त किए, फिर गाड़ी की चाबी उठाकर इबाद के हमरा निकल गया। इस अरसे में उसकी जिंदगी में बहुत सी नई तब्दीलियां आई थीं। जैसे अफंदी साहब अब इबाद को अपना बेटा मानने लगे थे। उसे यकीन था बहुत जल्द वो अनीका को भी कबूल कर लेंगे और इसी यकीन की बुनियाद पर वो अपनी पूरी जिंदगी उनका इंतजार कर सकता था। लगारी विला के बराबर में एक और हवेली की बुनियाद रखी जा रही थी, उसके ख्वाबों की दुनिया। वो अनीका और इबाद को वहां लाने वाला था। अफंदी साहब के साथ साथ उसने यूसुफ और खंसा को भी राजी कर लिया था। साथ इस मामले में उसका बायां बाजू बनकर खड़ा था। हादी अपनी बेरोजगारी का रोना रोकर साइड से निकल गया था। उर्वा को जब उसने बताया था कि वो अपना कमरा तीसरी मंजिल पर बनवाएगा ताकि पूरी हवेली का नजारा कर सके, तो उसकी नजरें बेइख्तियार अपनी टांगों पर गई थी। प्रोफेसर थोड़ा सा रहम, वो जेरे लब हंस दिया था। आर्यन ने उसे अपनी मोहब्बत के बारे में बताया था। वजह मुस्तकबिल में किसी भी मसले से बचना थी। वो चंद लम्हे आंखें फैलाए उसे देखता रहा, फिर ये कहकर बात खत्म कर दी थी। जो हुआ उसे भूल जाओ, जो हो रहा है उसमें जियो। वो तुम्हारा माजी था, मैं आइंदा ये बात ना सुनूं। बहुत कोशिश के बावजूद वो उसके मुंह से उर्वा के लिए लफ्ज बहन नहीं निकलवा सका था। साला ढीठ था। अयाद उसका भाई था, उर्वा उसकी कजन थी। ऑफिस के मामलात में उसकी समझदारी देखकर हारिस ने उसकी प्रमोशन कर दी थी। बकौल उसके उन्होंने ये सिर्फ अपने दिल को तसल्ली देने के लिए किया था कि कंपनी आज भी उनके हाथ में है। हवेली के लिए वो ऑफिस से कर्ज ले चुका था, जो लौटाने का उसका कोई इरादा नहीं था, न आज न आइंदा। इस सब नए में कुछ नया था जो अफंदी साहब करने जा रहे थे। उसकी ड्रामाई जिंदगी में एक और ड्रामा। वो दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर अंदर आया। सफेद कमीज शलवार में मलबूस, पूरी आंखें सुकेड़े वो कमरे की बिगड़ी हालत देखकर ठिठका। कदम आगे बढ़ाए तो मिशेल की चीख सुनाई दी। आगे मत आना। उसने माथे पर बल डाले सामने देखा, जो सर झुकाए फर्श पर कुछ तलाश कर रही थी। क्यों? उसने मजीद एक कदम आगे बढ़ाया। कह रही हूँ आगे मत आना, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? वो चिल्लाई थी। आर्यन ने हैरत से उसे देखा। वो सर उठाकर भूखी शेरनी की तरह उसे घूर रही थी। उसकी आंखों को देखकर वो ठिठका था। एक आंख सब्ज थी और दूसरी कत्थई। मिशेल, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? उसे कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ था। तभी तो कह रही हूँ आगे मत आना, मेरा लेंस गिर गया है यार, मिल ही नहीं रहा। व्हाट? तुम्हारी आंखों का रंग कौन सा है? उसने हैरत से मिशेल को देखा। कत्थई, वो जवाब देकर फर्श पर झुकी। आर्यन की आंखें हैरत से फैली थी, लब खुले रह गए थे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों में सदमा उभरा, फिर गुस्सा। मैं पागल था जो तुम्हारी सब्ज आंखों पर मरा था? मिशेल ने दाएं अब्रू उठाकर उसे देखा। कोई शक? मेरा वक्त बर्बाद मत करो, मुझे लेंस ढूंढने दो। सब बाहर बुला रहे हैं और ये पता नहीं कहाँ चला गया है। वो सर झटक कर फिर से लेंस तलाश करने लगी। वो उसे देख कर रह गया। मुनाफकत की दुनिया थी। लोग चेहरों को नकाब से छुपाते तो थे ही, अब तो आंखों पर भी लेंस चढ़ाने लगे थे। मैं मदद करता हूँ। उसने गहरी सांस ली। हाँ, लेकिन ध्यान से। अच्छा। मिशेल की ताकीद पर वो बस सर हिलाकर रह गया। किस्मत तो फूटी ही थी उसकी। कुछ अरसा पहले
शहरयार साकत खड़ा उन दोनों को देख रहा था, आंखों में नमी पिघलने लगी। आज दोस्ती का हक अदा हो गया था। वो दोनों साथ थे, कंधे से कंधा मिला था। सब्ज वर्दी में मलबूस पाक वतन के नौजवान चांदनी आसमान तले आंखें मूंदे लेटे थे। चेहरे पर लगा खून उनकी जान निसारी का गवाह था। तुम दोनों ने हमेशा की तरह मुझे अलग कर दिया, तुम दोनों बाजी ले गए। आंखों से एक आंसू लुढ़कता हुआ गिरा। चांदनी आसमान ने थककर पानी का एक कतरा जमीन पर गिराया और फिर यक के बाद दीगरे पानी के कई कतरे जमीन को भिगोते गए। आंखों से गिरते आंसुओं और आसमान से गिरते पानी में फर्क मिटता गया। तेज बारिश का शोर बढ़ता गया। यूं ही उन्हें तकते हुए उसे आर्यन के चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर आए। वो तेजी से उसके पास नीचे बैठा। वो धीरे धीरे आंखें खोल रहा था। अधखुली आंखों से उसने शहरयार को देखा, फिर खांसने लगा। सा सा वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था। शहरयार झुककर अपना कान उसके मुंह के करीब ले गया। साले कमीने, नब्ज तो देख ले। वो नम आंखों से हंस दिया था। आर्यन वापस आंखें बंद कर चुका था। उसने बेख्तियार रब का शुक्र अदा किया था। आगे बढ़कर उसने हसन की नब्ज पर हाथ रखा। खुशी की लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। कमांडर, हमारे गाजियों को मदद चाहिए। वो पूरे जोश से चिल्लाया था। उसकी आवाज पर बादल जोश से बरसने लगे थे। तेज दौड़ते कदमों की आवाज सुनाई दी। कई जवान उनकी जानिब आ रहे थे। फिजा में छाई उदासी पल में दूर जा बैठी थी। वो जिंदा थे, यही काफी था। वो सब हैरत से आंखें फैलाए आर्यन को तक रहे थे। निगाहें उसके पूरे वजूद का जायजा ले रही थी। वो ठीक था, बिल्कुल ठीक। सबकी नजरें अब उससे फिसलती उसके बराबर में खड़ी उस लड़की पर टिकी जो इस रात की कैफियत में होंठ कुचलती उन्हें देख रही थी। उनकी निगाहों ने उस लड़की से वापस आर्यन तक का सफर किया था। कर्नल मुहिब सुबह मिशन पर जा रहे हैं। 3 से 4 महीने पहले वापसी मुमकिन नहीं। मैं चाहता हूँ घर के बड़े आज ही मिशेल का हाथ मांगने कर्नल के घर चले जाएं। उसकी आवाज ने सकूत को तोड़ा था। वो सब बेयकीनी और हैरत से कभी उसे और कभी मिशेल को देख रहे थे। सबसे पहले अनादिया होश में आई थी। आगे बढ़कर उसने बाजू से खींचकर मिशेल को साइड पर किया, फिर मेज से पानी का जग उठाकर आर्यन पर उल्टा था। सब इतनी अचानक हुआ कि कोई भी कुछ समझ नहीं पाया था। पानी धार की सूरत में उसके बालों से गिर रहा था। वो मुकम्मल भीग चुका था। अनादिया ने गुस्से से लाल होते चेहरे से उसे घूरा था। मुझे इजाजत दे बाबा, मैं रख कर 2 लगाऊं इसे। आर्या ने नजर उठाकर उसे देखा। समझता क्या है ये खुद को, जिंदगी को मजाक बना रखा है इसने। हमें मैसेज करेगा कि आर्यन की लाश हवेली पहुंच चुकी है और जब हम यहाँ आएंगे तो ये बदतमीज इंसान अपने रिश्ते की बात कर रहा है। दिल तो कर रहा है यही जूता उतार लो अपना। उसने एक कहर आलूद निगाह उस पर डाली। वो अब इत्मीनान से अपने बालों में हाथ चलाकर पानी की बूंदें फर्श पर गिरा रहा था। आर्यन, ये क्या बचपना है? ऐसी बात थी तो तुम सीधे तरीके से कह सकते थे हमसे। याहिया ने संजीदगी से उसे देखा। आप सबको इकट्ठा करने के लिए ये जरूरी था पापा। वो खुलकर मुस्कुराया। वो सब उसे देखकर रह गए। गहरी सांस लेते हुए सब बड़े सोफों पर बैठ गए। आर्या ने निगाहें तिरछी करके दाएं तरफ देखा जहां उर्वा अयात के बराबर में खड़ी नकाब ठोड़ी पर टिकाए जमूद की हालत में उसे देख रही थी। आंखों में नमी चमक रही थी। चेहरा रफ्ता रफ्ता गुस्से से लाल पड़ने लगा था। कुछ सोचकर वो आगे बढ़ी थी। उर्वा नहीं, अयात की तेज आवाज पर सबने गर्दनें तिरछी करके उसे देखा था। वो तेजी से कदम उठाती उसके पास आई और उसे कुछ समझने का मौका दिए बिना हाथ में पकड़ी तमाम किताबें पूरी कुव्वत से उसके सर पर दे मारी थी। उसका सर एक लम्हे के लिए झुका था। अगले पल जैसे ही उसने सर उठाया था, वो एक मुक्का सीधा उसकी नाक पर रसीद कर चुकी थी। अयाद ने लब दांतों में दबाए थे। फौज ने तुम्हें इंसानी जज्बात के साथ खेलना सिखाया है। डस डस डस, एक साथ सारे अल्फाज तंज के तीरों का रूप धारते उसके दिल में पेवस्त हुए थे। बेगैरती की भी हद होती है, तुम वो भी पार कर चुके। शक्ल मत दिखाना अपनी मुझे अब। एक कहर आलूद निगाह उस पर डालकर वो मिशेल की तरफ मुड़ी। अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर क्यों तुली हैं आप? बस यही सवाल उससे करके वो तेज तेज कदम उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। तेजी से सीढ़ियां चढ़कर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। धाड़ की आवाज में कमरे का दरवाजा बंद होने पर आर्या ने पलक झपक कर सब पर निगाहें दौड़ाई। इसी के काबिल हो तुम। अनादिया भी अपना बैग उठाती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी थी। कोई और? उसके मासूमियत से कहने पर सबकी हंसी छूटी थी और जो नहीं हंसे थे वो अब आस्तीनें चढ़ा रहे थे। देखो पास मत आना। उसने एहतशाम, आबान, साले और हादी को अपनी तरफ बढ़ता देखकर उन्हें तनबीह की। वो सब उसे घूरते उसकी तरफ पड़ने लगे। साले तेरी तो। उसने फौरन बाहर की तरफ दौड़ लगा दी थी। सब उसके पीछे भागे थे। चिमटे, मैं कह रहा हूँ वहीं रुक जा, बच के दिखा तो आज जरा, आबान चिल्लाया था। सब मुस्कुरा दिए थे और मिशेल मिशेल गहरी सांस लेती सोफे पर ढह गई थी। उसे एक बार संजीदगी से अपने फैसले पर दोबारा सोचना था। सुना था मोहब्बत अंधी होती है, मगर वो मोहब्बत के चक्कर में
अपनी जिंदगी अधेर नहीं कर सकती थी। हाल मगरिब के बाद आहिस्ता आहिस्ता रात अपने पर फैलाने लगी थी। पूरी हवेली बरकी जुगनुओं से जगमगा उठी थी। शोरोगुल की आवाजें खुशियों से भरपूर कह कहे माजी के गमों को सीनों में छुपाए हवेली के दरो दीवार को तस्कीन पहुंचा रहे थे। वो सब लाउंज में बैठे खुशगपियों में मसरूफ थे। उर्वा नूरुल ऐन को मेहंदी लगा रही थी, जबकि अलमास अनीसा को, अनादिया, मिरहा और मिनाल सुबह वलीमे की तकरीब के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। ये मिशल कहाँ रह गई है? उर्वा ने दाएं हाथ में मेहंदी की कोन पकड़े सर उठाकर सवालिया नजरों से अनादिया को देखा। पता नहीं, कहा तो था उसे कि नीचे आ जाओ। उसकी बात मुकम्मल होते ही मिशल अपने कमरे से बरामद हुई। उसके पीछे ही आर्यन जो मुंह फुलाए बाहर आया था। इसे क्या हुआ? अनादिया के पूछने पर मिशल कंधे उचकाती सोफे पर बैठ गई। आर्यन ने रुककर पुरसोच नजरों से अनादिया को देखा, फिर आगे बढ़कर उसके बालों में लगा कैचर उतारा और फौरन बाहर की तरफ लपका। आर्यन के बच्चे, मरोगे तुम आज, वो दबा दबा सा चिल्लाई। बाल खुलकर शानों पर आ गिरे थे, कुछ कमर पर बिखर गए थे। मिशल ने मुस्कुराहट दबाई। उर्वा, हारिस अंकल आए हैं। अंदर दाखिल होते उसामा ने इत्तला दी। हाँ, बताया था अयाद ने। उसने सर को जुम्बिश दी। अम्मी कह रही हैं चाय बना दो। वो धम से सोफे पर बैठा। उर्वा ने घूर कर उसे देखा। मैं काम कर रही हूँ, ये जो सामने फारिग अवाम बैठी है इसे कहो। उसने आंखें घुमाई। मेरा कल वलीमा है भाई, मैं क्यों काम करूं? अनादिया ने मुंह के जाविये बिगाड़े। मैं तो मेहमान हूँ, वलीमे के बाद चली जाऊंगी। अच्छा थोड़ी लगेगा मैं काम करूं। मिशल भी पीछे हटी। उर्वा ने दांत पीस कर उसे देखा। चाय ही बनानी है यार, बना दो ना, मुझे कपड़े भी इस्त्री करने हैं अभी। उसने मुंह फुलाया। अनादिया, तुम कुछ कह रही थी मुझे। मिशल बमुश्किल अपनी हंसी रोकती उसे नजरअंदाज करके अनादिया की तरफ मतवज्जा हुई। फिटे मुंह तुम लोगों का। वो मेहंदी मेज पर पटकती उठ खड़ी हुई। एक कप मेरा भी। अनादिया मुस्कुराई। मेरा भी। मिशल हल्का सा हंसी। मैं भी लूंगी। नूरुल ऐन ने भी हाथ उठाया। हम तीनों भी। मिराह भी मैदान में आई। जहर मिला दूं तुम लोगों की चाय में। वो उन्हें घूरती किचन की तरफ बढ़ गई। पीछे उन सबके कहकहे बुलंद हुए थे जो उसे मजीद तपाने के लिए काफी थे। आबी, इबाद को देखिए, तंग कर रहा है मुझे। मोहम्मद मुंह फुलाए उसके बराबर में बैठी। मैं शरीफ इनोसेंट मासूम बच्चा। वो मासूमियत से मुस्कुराता अयाद के बाएं तरफ बैठा। आबी, मुझे इस अंग्रेज के कान मरोड़ने की इजाजत दें बस। मोहम्मद ने दांत कचकचाए थे। आबी, मुझे मोहम्मद आपो के दांत तोड़ने की इजाजत दे दें बस। इबाद ने आंखें घुमाई। तुम दोनों मुझे यहाँ से खिसकने की इजाजत दे दो बस। उसने मुस्कुराहट दबाई। दोनों ने सदमे से उसे देखा। आबी, मोहम्मद रोहासी हुई। आबी आए, मैं आपको ले चलता हूँ। इबाद की बात पर वो हंस दिया था। मोहम्मद, इबाद, तुम दोनों 2 मिनट खामोश हो जाओ, मुझे बात करनी है अयाद से। हारिस ने हादी के हमरा लाउंज में दाखिल होते हुए संजीदगी से कहा। अयाद और इबाद ने आपस में नजरों का तबादला किया। खैरियत अफंदी साहब? वो सोफे पर बैठते हारिस से पूछ रहा था। हाँ, मुझे तुम्हें बताना है कि मैंने तुम्हारी शादी की तारीख तय कर दी है। क्या? उसने भवें इकट्ठी किए उन्हें देखा। सुबह हादी का वलीमा और तुम्हारी शादी है। उन्होंने आहिस्ता से उसके सर पर बम फोड़ा था। वो हैरत से उन्हें देखे गया। अभी मैं बात करके आया हूँ यूशा से, वो सुबह तक जवाब दे देंगे। वलीमा वैसे भी रात को है। उन्होंने रुककर उसे देखा। आप फौरन उन्हें मना करेंगे? उसने होंठ खींचे थे। वाकई? वो दाएं अब्रू उठाकर पूछ रहे थे और वो उनकी बात समझ चुका था। वो यूशा से बात कर आए थे। अगर सुबह वो मस्बत जवाब देते और वो इनकार कर देता तो ये इनकार उर्वा के लिए समझा जाता और यकीनन वो ये कभी नहीं चाहेगा। उसने दांत कचकचाकर हारिस को देखा था, जिनके चेहरे पर भला का सुकून और इत्मीनान था। ओए मोटे ड्रामे बंद कर और उठो, चलो मेरे साथ, इतने काम करने हैं हमने। हादी ने मुस्कुराहट दबाकर उसके तासुरात से महसूस होते हुए कहा। मोहम्मद और इबाद गर्दनें घुमाकर कभी उसे और कभी हारिस को देख रहे थे। वो दोनों अपना रद्द-ए-अमल अयाद के आखिरी जवाब के बाद जाहिर करने वाले थे। बहुत सोचने के बाद वो कह रहा था, उनका जवाब आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं अना को बता दूंगा। वो सोफे से उठ खड़ा हुआ। याहू! इबाद खुशी से उछला था। मोहम्मद ने मुस्कुराकर उसे देखा। हारिस के लबों को तबस्सुम ने आन घेरा था। हादी मेज से गाड़ी की चाबी उठाने के लिए झुका। आबी, आबी, 1 मिनट में अभी आई। मोहम्मद उसे रोकती हुई तेजी से अपने कमरे की तरफ भागी थी। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो हाथ में चॉकलेट था। ऐसे मौकों पर मुंह मीठा करते हैं। बाबा, आप मिठाई साथ लाते ना? वो चॉकलेट का रैपर उतारती अयाद की तरफ बढ़ी। अयाद ने खफगी से उसे देखा था। आबी, मोहम्मद के पुचकारने पर उसने आगे बढ़कर चॉकलेट को दांतों से काटा था। बहुत बहुत मुबारक हो। वो खुलकर मुस्कुराती उसके सीने से लगी थी। वो हल्का सा मुस्कुराकर उसे खुद से लगा गया। आबी, मैं भी। इबाद ने शिकवा किया। तुम हमारे साथ चल रहे हो। हादी की बात पर उसने जिताती निगाहों से मोहम्मद को देखा, जो मुंह फुलाए हादी को देख रही थी। मोहम्मद भी। हादी के कहने पर मोहम्मद खिलखिलाई थी।
इबाद ने मुंह के जाविये बिगाड़े। जल्दी आ जाना, घर सुबह बहुत काम करने हैं, तकरीब हवेली में ही होगी। आर्यन कह रहा था वो भी साथ चलेगा तुम लोगों के। फिक्र ना करें, सब हो जाएगा चाचू। हादी इबाद के हमरा बाहर की तरफ बढ़ा। मोहम्मद अपनी शाल उठाने के लिए कमरे में गई। वो वहीं खड़ा उसका इंतजार करने लगा। हारिस दाएं हाथ की बंद मुट्ठी पर गाल टिकाए मुस्कुराते हुए उसे देखने लगे। खफा खफा से चेहरा लिए उन्हें नजरअंदाज करने के लिए दीवार पर लगी पेंटिंग को घूरता अयाद अफंदी। मोहम्मद के आने पर उसने एक नजर उन पर डाली, फिर उसके साथ बाहर की तरफ बढ़ गया। वो हल्का सा हंस दिए थे। एक दिन में सारे बदले चुका दिए थे उन्होंने। सुकून, इत्मीनान सब मिल गया था। उर्वा कहाँ है? रहमा ने पूरे लाउंज पर निगाहें दौड़ाते हुए पूछा। सोने चली गई है, मोबाइल पर ड्रामा देखती नूरुल ऐन ने जवाब दिया। आज हारिस भाई आए थे, सब रुककर उनकी तरफ मतवज्जा हुए। सुबह अनादिया और हादी के वलीमे के साथ उर्वा की रुखसती भी करना चाहते हैं वो संजीदगी से कहती सोफे पर बैठ गई। सबने आपस में नजरों का तबादला किया। चाचू और दादी ने क्या जवाब दिया? सवाल अनीसा की तरफ से आया था। जाहिर है मस्बत जवाब दिया है। लड़के सारे अयाद और हादी के साथ चले गए हैं। समझ नहीं आ रहा अचानक से सब कैसे होगा। अयाद मान गया? अनादिया ने हैरत से उन्हें देखा। उसी से पूछकर कहा होगा ना हारिस भाई ने। अनादिया की बेख्तियार हंसी छूटी थी। इतने अरसे में वो उन दोनों बाप बेटे को थोड़ा बहुत तो जान चुकी थी। अच्छा आप परेशान ना हो, सुबह चलते हैं मार्केट, हो जाएगा सब। अलमास ने उनकी परेशानी दूर की। हाल देखो उसका, मजे से सो रही है। उन्होंने सर झटका। वो सब मुस्कुरा दी। सुबह के उजालों ने झाड़ू लेकर अंधेरे का सफाया कर दिया था। बादलों से साफ नीला आसमान जगमगा उठा था। वो नाश्ते के बाद वलीमे के लिए चंद काम निपटाकर नहाने चली गई थी। नहाकर जब वो बालों को तौलिए से रगड़ती बाहर निकली तो बेड पर रहमा को बैठे पाया। क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठी हैं? उसने उनके चेहरे पर बला की संजीदगी देखते हुए पूछा। बालों को झटके से कमर पर बखेर दिया। उसने सवालिया नजरों से रहमा बेगम को देखा जो खामोश बैठी थी। अम्मी? और फिर रहमा ने उसके सवाल के जवाब में जो कहा था वो उसके होश उड़ाने के लिए काफी था। उसने हैरत से सांस रोके उन्हें देखा। ऐसे कैसे आप लोगों ने हाँ कर दी? पूछा भी नहीं मुझसे? चश्मे के पास डार्क ब्राउन आंखों में हैरत की इंतहा थी। अब कुछ नहीं हो सकता, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मार्केट जाना है हमें। वो हुक्म सादिर करती बाहर की तरफ बढ़ गई। उर्वा ने सदमे से उन्हें देखा, फिर लपक कर मेज पर रखा अपना मोबाइल उठाया। उसका नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाए वो तौलिया लिए बालकनी में आ गई। अस्सलाम वालेकुम, उसकी नरम धीमी आवाज कानों में पड़ी। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या किया है आपने? आपने कहा था मेरा बीएड मुकम्मल होने देंगे। लाल पड़ते चेहरे के साथ वो तौलिया खुश्क होने के लिए रखते हुए पूछ रही थी। क्या किया है मैंने? वो अनजान बना। आधी मजाक मत करे, मैं रो दूंगी अब। और वो हंसी हुई। अरे बताओ तो सही, किसकी बात कर रही हो? उसने शरारत से मुस्कुराहट दबाई थी। शादी की? आप ऐसा कैसे कर? वो कुछ कहते कहते रुकी। दूसरी तरफ अयाद की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो पुरसोच नजरों से सामने देख रही थी। सोचो सोचो, मैंने तुम्हें कॉल की थी, कहा था कि अफंदी साहब गड़बड़ करने आ रहे हैं और फिर उन्होंने हमारी शादी की बात की। उसने अयाद की बात मुकम्मल की। बिल्कुल, आप मना क्यों नहीं कर रहे? कैसे करूं? मैं कह दूं मुझे उर्वा से अभी शादी नहीं करनी? उसने निचला होंठ दांतों में दबाया। दोनों तरफ खामोशी छा गई। वो मुंह फुलाए हवेली के गेट से दाखिल होती गाड़ी को देख रही थी। गाड़ी उसी की थी। गेट बंद हुआ, गाड़ी रुकी। हादी और आर्यन के हमरा वो नीचे उतरा। मोबाइल कान से लगाए वो उन्हें इशारे से अंदर जाने का कहकर खुद बागीचे की तरफ आ गया था। नीचे आएंगी हानम? वो सर उठाकर उसे देखते हुए पूछ रहा था। उसने खफगी से नफी में सर हिलाया था। वो मुस्कुराहट दबाता सर झुका गया। मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई। वो रोहासी हुई। अब लगा लो, इतना वक्त है अभी, पूरे 10 घंटे। उसने हल पेश किया। वो अब कुर्सी पर बैठ रहा था। और मैंने काम भी किए हैं। कौन सी लड़की शादी वाले दिन भी काम करती है? अब मैं बाद में एक्स्ट्रा टाइम लूंगी। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए सर उठाकर उसे देखा था। वो हनूज मुंह फुलाए खड़ी थी। चलेगा? लड़ाई में गलती जिसकी भी होगी कमरे से बाहर आप जाएंगे। चलेगा? वो जेरे लब हंस दिया। चलेगा। मैं नहीं जानती आप अपना ऑफिस और यूनिवर्सिटी एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, लेकिन मुझे आप पूरा वक्त देंगे, अच्छा? उसने आंखें घुमाई। मंजूर है। सुबह यूनिवर्सिटी के लिए आप उठाएंगे क्योंकि यहाँ मुझे अम्मी उठाती हैं, मैं अलार्म पर नहीं उठती। चलेगा? चलेगा। मैं के आने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं। खुद पढ़ाएंगे, पेपर्स की तैयारी भी आप करवाएंगे। हाँ, हक महर में चॉकलेट नहीं लिखवा सकी थी मैं, मगर आप रोज चॉकलेट लाएंगे मेरे लिए। मंजूर है। मेरी गलतियों पर बहुत ज्यादा नहीं डांटेंगे, पहले उनकी निशानदेही करेंगे। वो कुर्सी की पुश्त से टेक लगा गया था। हाँ, फिर मिलकर उन्हें ठीक करेंगे। वो मुस्कुरा दी। मैं चाहती हूँ मेरे हर हुक्म पर तुम कहो, बेहतर दुरुस्त
خوب मुनासिब बजा अभी आदि बे उर्वा हानम रोज सुबह फजर के बाद सूरह रहमान सुनाएंगे। उसने चौंक कर सर उठाया था। निगाहों में बेपनाह हैरत लिए उसे देखा था। प्लीज, उसने इसरार किया। वो चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर लब दांतों में दबाए सर झुकाया। कोशिश करूंगा, वादा करें कि कोशिश करेंगे। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद करके खोली। वादा? वो अंदर तक सरशार हुई थी। मैं ये वादा निभाना आपके लिए कभी मुश्किल नहीं बनाऊंगी। वो हल्का सा मुस्कुरा दिया। अब जाऊं? सुनो। वो रुक कर उसे देखने लगी। हमेशा साथ रहोगी ना? वो सांस रोके उसे देखे गई। उसकी आवाज में खौफ था, किसी को खोने का। इतनी बार वो अपने अपनों से आजमाया गया था कि अब उसे उसके साथ की यकीन दहानी चाहता था, और ऐसे लम्हे में वो उसे जिंदगी का असल चेहरा नहीं दिखा सकती थी, जिसमें जुदाइयां नई जिंदगी की शुरुआत थी। वो ये हक रखता था कि उसे अपने साथ का यकीन दिलाया जाए, सिर्फ चंद लम्हों के लिए किसी किस्म के भी खौफ से आजाद करवाया जाए। हमेशा उसे उसका हक दिया गया था। वो सुकून से आंखें मूंद गया था। एक लम्हे के वक्फे से जब उसने आंखें खोली तो उनमें अनोखी चमक थी। नीली आंखों में जिंदगी के जुगनू चकमका रहे थे। नए हमसफर, नए ख्वाब। आप 10 घंटों में से 15 मिनट ले चुके हैं। वो हंस दिया। ठीक है, जाएं आप। वो मुस्कुरा दी, फिर काल काटकर मोबाइल कान से हटाया। शाम के साए धीरे धीरे फैल रहे थे। बागीचे में तकरीब का मुकम्मल इंतजाम हो चुका था। फूलों से सजा स्टेज भी तकरीबन तैयार था। कुर्सियां भी लगा दी गई थी। वो चारों एक मेज के गिर्द बैठे आर्यन का इंतजार कर रहे थे, जो किसी काम से अंदर गया था। उन्हें अब वापस घर जाना था, फिर रात को बारात के साथ यहाँ आना था। इबाद, आबान, साले और एहतशाम बाहर के कामों में मसरूफ थे, जबकि उनके जिम्मे यहाँ का काम सौंपा गया था, जो तकरीबन मुकम्मल था। हादी भाई, सादी भाई, आदि, सबने नजरें उठाकर सामने देखा था। वो उसे सामने देखकर गड़बड़ाई थी। सब मुस्कुराहट दबाते सर झुका गए। वो हादी भाई और सादी भाई आपको दादी बुला रही हैं। उंगलियां मरोड़ती वो इस तरह की कैफियत में उन्हें अरीशा बेगम का पैगाम दे रही थी। तुम जाओ, हम आ रहे हैं। हादी ने उसकी मुश्किल आसान की। वो बिना किसी को देखे अंदर की तरफ भागी थी। कहाँ है ये उसामा का बच्चा? जलील इंसान कत्ल होगा मेरे हाथों। घबराहट की जगह अब गुस्से ने ले ली थी। सोफे पर बैठा उसामा तेजी से सामने से आते आर्यन के पीछे छुपा था। मैंने बार बार पूछा था, बाहर अयाद तो नहीं बैठा? वो वहीं बैठा था। तुम जलील इंसान, खुद दे आते ना उन्हें दादी का पैगाम। वो उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ी, जब आर्यन बीच में आया। हाँ तो क्या है, 2-3 घंटे बाद वैसे भी मिलना है। उसामा ने मुस्कुराहट दबाते हुए आर्यन की ओर से सर निकाला। वो दांत पीस कर रह गई। तुम तैयार नहीं हुई अभी? जा रही थी अबाया पहनने। इस मोटे ने कहा कि मैं मसरूफ हूँ। तुम साद भाई और हादी भाई से कहो दादी बुला रही हैं उन्हें। जंगली जानवर। उसामा ने दांत निकाले। उर्वा, तुम्हारी आवाज हम बाहर आसानी से सुन रहे थे। अंदर आते हादी ने उसे इत्तला दी। उसने खजल होकर कान खुजाया था। अच्छा चलो, अब जल्दी से बाहर आ जाओ। तुम्हें और अनादिया को सर्विस हाउस छोड़कर फिर अयाद के घर जाऊंगा। पार्लर, उर्वा ने तस्दीक की। वही सर्विस हाउस। उसने आंखें घुमाई। जाओ अब जल्दी करो। उसके कहने पर घूरी से नवाज से सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। फूटी किस्मत है मेरी। उसकी बड़बड़ाहट को सुनकर वो मुस्कुराहट दबाता बाहर की तरफ बढ़ गया। वो यूनिवर्सिटी से छुट्टियां मिलने पर उमर के हमरा पाकिस्तान आया था। 2 घंटे पहले उसने 2.5 सालों बाद पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखा था। एयरपोर्ट से सीधा वो अनीका के पास आया था। उमर अपने किसी रिश्तेदार के पास चला गया था। यहाँ आकर उसे पता चला था कि अयाद की आदि आदमी की शादी हो रही है। तभी वो सुबह से गायब था। उसके लिए ये खबर हैरान कुन और परेशान कुन थी, क्योंकि सुबह अयाद की तरफ से मिलने वाले पैगाम के मुताबिक सुबह उसकी भी शादी थी। वो बेक वक्त 2 शादियों में शिरकत कैसे करेगा, जबकि एक तरफ भाई, दूसरी तरफ दोस्त था। वो इसी कश्मकश में इबाद के इंतजार में लाउंज में सोफे पर बैठा चाय पी रहा था। साथ ही अनीका से हल्की फुल्की गपशप में मसरूफ था, जब दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज आई। उसने गर्दन घुमाकर सामने देखा तो इबाद भागता हुआ उसके पास आया। दाऊद भाई, आप आ गए। आई मिस यू सो मच। वो खुशी से कहता उसके गले लगा था। दाऊद ने जवाबन मुस्कुराते हुए उसके गाल खींचे। हाय, मैंने तुम्हारे गालों को बहुत मिस किया यार, और तुम्हारी बातों को भी। वो झुककर उसके गाल पर बोसा देते हुए कह रहा था। आदि की बातें सुनकर वाकई लगता है कि तुम्हारी और इसकी रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। मुस्कुराती आवाज उसकी समात से टकराई। वो रुका, नजरें सामने टिकी। दिमाग आवाज की निशानदेही करने लगा, और फिर वो उस आवाज को पहचान गया था। आंखों में हैरत उभरी, फिर बेयकीनी, और फिर खुशी की एक लहर उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो तेजी से उठा, मुड़कर उसे देखा, जो जींस की जेब में हाथ डाले जरा सा मुस्कुराते उसे देख रहा था। मोस्ट वेलकम मैन, मुस्कुराते हुए कहा गया था। वो तेजी से आगे बढ़कर उसके गले लग गया था। उसे खुद में भींचते हुए आंखें छलक पड़ी थी। तुम आदि?
वो अपनी नम आंखें रगड़ते हुए कह रहा था, हाँ मैं आदि, अयाद अफंदी उर्फ आदि। लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी हुई। और तुम दाऊद, दाऊद जहांगीर। वो हंस दिया था। बहुत खुश हूँ यार, तुम्हें देखकर यकीन नहीं आ रहा तुम खड़े हो और मेरे रिश्तेदार भी निकल आए, भले दूर के ही सही। वो खुशी और बेयकीनी की मिलीजुली कैफियत में कह रहा था, तुम सा मुखलिस दोस्त मुझे दोबारा नहीं मिला दाऊद, मिलना भी नहीं चाहिए। यू नो आई एम वन एंड ओनली। दाऊद ने फखरिया कॉलर झाड़े। दाऊद, आधी शाम के 7 बज रहे हैं, देर हो रही है, बाकी बातें बाद में। अनीका की बात पर दोनों उनकी तरफ मुतवज्जा हुए। अना आप तैयार हो जाएं, घर चलेंगे, मोहम्मद इंतजार में है आपके। दाऊद तुम भी और आबी तो रेडी है। अनीका ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी, फिर अपना अबाया लेने कमरे में चली गई। अंकल ने तुम्हें मना कैसे लिया शादी के लिए? दाऊद ने जरा सा झुककर उसके कान के पास धीमी आवाज में पूछा। पक्की गोटियां चली हैं, वो मबहम सा मुस्कुरा दिया। ये खुली फिजा जाने, ये बिखरी हवा जाने, हमको है कहाँ जाना, ये तो रास्ता जाने। उसने आगे बढ़कर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक किया। चाहे ले ले तो मेरी जिंदगी, पर ये मुझसे वादा कर। एक बार फिर नेक्स्ट पर क्लिक किया गया। ड्राइविंग सीट पर बैठे आर्या ने नजरें तिरछी करके उसे देखा। जिंदगी तेरा हो कर्ज अदा, सांस मेरी हो मुझसे जुदा। उसने तब कर एलसीडी बंद कर दी। गाड़ी में खामोशी छा गई। वो लब भींचते हुए चेहरा घुमाकर शीशे के पार देखने लगी। आर्यन ने एक नजर उसे देखा, फिर पीछे बैठी अनादिया को जो उसे ही देख रही थी। आपस में नजरों का तबादला करके आर्यन ने गला खंगारा, उर्वा क्या मुसीबत है? हनूज शीशे के पार लंबी हमवार सड़क को देखते हुए पूछा गया। रोने लगी हो? और यही वो मौका था जब उसके हलक में आंसुओं का गोला अटकने लगा था। आंखों में जमी नमी की तह पिघलने लगी थी। उसने सर झुकाकर आंसुओं को पीछे धकेलना चाहा था। ऐसे ऐसे अचानक कौन करवाता है रुखसती? उसकी आवाज रुंध गई थी। नहीं जाना मुझे अभी घर से। आंखों से आंसू निकलकर नकाब में जज्ब हो गए। यार ऐसे तो ना रो, हंसी आती है मुझे। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाई। उसने सख्त नजरों से उसे घूरा था। लड़की ये तो होना था, आज नहीं तो कल। रोने वाली क्या बात है? कौन सा दूर जा रही हो? साथ रहेंगे, वैसे भी हम, परेशान ना हो। अनादिया ने उसे तसल्ली दी। दूर नहीं जा रही, जा तो रही हो ना। हाय बस करो, आप मैं रोने लगा तो गाड़ी लग जानी है। उसने गर्दन तिरछी करके दांत पीस कर उसे घूरा था। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा अब अगर बकवास की तो, उसने वार्निंग दी थी। किसकी जुबान बोल रही हो? अनादिया की हंसी छूटी थी। आर्यन की मुस्कुराहट गहरी हुई थी। जलील इंसान, मनहूस इंसान, जंगली जानवर। उसने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में जकड़े थे। लड़की गाड़ी लग जाएगी, इसे छोड़ो। अनादिया के तेजी से कहने पर वो उसे घूरती पीछे हुई। पता नहीं क्या होने वाला है मिशेल के साथ। मुंह बंद करके बैठना अब। दांत कचकचाती वो रुख मोड़ गई। आर्यन ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा, फिर एलसीडी ऑन की। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए। हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। उसने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए सर हाथों में गिराया था। वो दोनों उसकी हालत से महजूज हुए थे। अपने कमरे से निकलकर उसने एक चोर निगाह इर्द गिर्द डाली, फिर तेजी से बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। किसी के आने से पहले वो यहाँ से जाना चाहता था। वो लाउंज से निकलकर बाहर आया। बागीचे से गुजरते हुए उसने जैसे ही गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहा, अपने सामने किसी को खड़ा पाया। कोई सख्त और मशकूक निगाहों से उसे घूर रहा था। सफेद कमीज शलवार में मलबूस, चेहरे पर दाढ़ी सजाए, शाम के सुरमई बादलों जैसा वो हसन था। आर्यन का यार। किधर? दाएं अबरू उठाकर उसे देखा गया। उबैद के घर। उसने कान की लो खुजाई। सच सच बताओ, उस उबैद की कोई बहन है क्या जो सारा दिन उबैद के घर जा रहा हूँ? उबैद के घर था, उबैद बुला रहा है। चक्कर क्या है? हाँ। हसन ने आंखें सुकेड़े उसे देखा। अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हैं हसन भाई? उसकी बहन मेरी भी बहन है। वो तो बस अच्छा दोस्त है। तभी उसके उठे कंधे ढीले पड़े। मैं भी आर्यन का बहुत अच्छा दोस्त हूँ। इसी खुशी में मुझे अयाद के घर ले चलो। मुझे एड्रेस नहीं पता, यहाँ काम मुकम्मल हो गया है, अब बारात के साथ आऊंगा। चलो शाबाश। हसन उसका कंधा थपथपाता गाड़ी की तरफ बढ़ गया। शहरयार भाई कह रहे थे आप दोनों ने उन्हें एहतशाम भाई वालों के साथ काम पर लगाकर सौतेलों वाला सलूक किया है, तो ये बेहतर नहीं कि आप उनके पास जाएं। उसने कमाल होशियारी से अपना बचाव करना चाहा, मगर दूसरी तरफ हसन था। तुम्हें किसने कहा वो हमारा सगा है? साला ड्रामे कर रहा है। तुम चुपचाप गाड़ी में बैठो और हाँ, ड्राइविंग भी तुम ही करोगे। उसामा ने सरापा एहतजाज बनकर उसे देखा था। आखिर उसे कोई उसके दोस्त के घर जाने क्यों नहीं देता था? शाम के साए गहरे होने लगे थे। हर गुजरते लम्हे के साथ घर में चहल पहल बढ़ रही थी। हारिस ने सुबह से पूरा घर सर पर उठा रखा था। बकौल अयाद के अफंदी साहब मेंढक की तरह फुदक रहे हैं आज। मोहम्मद अपने कमरे में तैयार हो रही थी। इबाद हारिस के आगे पीछे फिर रहा था। अनीका मुलाजमों को देख रही थी और दाऊद को भी अपने साथ लगा लिया था।
इस सब में एक वही था जो अपने कमरे में बेड पर बैठा बंद मुट्ठी पर ठोड़ी टिकाए रफ्ता रफ्ता अपने कमरे की बिगड़ती हालत को देख रहा था। वार्डरोब से उसके आधे कपड़े निकालकर बेड पर फेंक दिए गए थे और आधे कड़े इम्तिहान से गुजर रहे थे। सिंघान मेज पर रखी चीजें चीख चीख कर अपने साथ हुए जुल्म का ऐलान कर रही थी। आईने में अपना अक्स देखते हादी ने एक और परफ्यूम उठाया। परफ्यूम को ढक्कन पर जरा सा छिड़क कर उसका ढक्कन नाक के करीब ले गया और एक बार फिर मजा ना आने पर परफ्यूम वापस रख दिया गया, जबकि उसका ढक्कन जमीन बोस हो चुका था। इसीलिए अलमारी से आर्यन ने अपना सर निकाला। लंदन में शॉपिंग तो की होगी तुमने, शराफत से बताओ कहाँ छुपा रखे हैं बैग्स? अयात ने पलक झपक कर उसे देखा। यही रखे हैं। आर्यन ने सर को हल्की सी जुम्बिश दी, फिर वापस अपने काम में मसरूफ हो गया। वो गहरी सांस लेता वहीं लेट गया। आम से हुलिये में मलबूस वो टांगे लटकाए लेटा था। छत को तकते हुए उसने दुआ की थी, अल्लाह ऐसे गधे दोस्त किसी को ना दे। कुछ सोचकर उसने पास रखा अपना मोबाइल उठाया, फिर कुछ नंबर मिलाकर मोबाइल कान से लगाया। चंद बैल के बाद कॉल उठा ली गई। आर्यन के डिनर सूट के साथ क्या किया है तुमने? नीली आंखें छत पर टिकाए पूछा गया। कुछ खास नहीं, बस इस्त्री रखकर छोड़ दी थी, दूसरी तरफ से लापरवाही से कहा गया। अब गधा मेरी वार्डरोब में घुसा हुआ है, मेरे कमरे की हालत बिगड़ चुकी है। अगर तुम्हें ये सिमटा हुआ ना मिले तो शिकायत मत करना। नजरें अब आर्यन पर टिकी, जो सुरमई रंग के कोट पैंट को उलट पलट कर देख रहा था। पास कोई कुलदान पड़ा है तो दे मारे उसके सर पर, आसान हल बताया गया। उसने निगाहें जरा सी तिरछी करके इर्द गिर्द देखा, मगर मतलूबा चीज नहीं मिली। सुन बे, ये तो डन हो गया, अब मुझे जूते चाहिए, कहाँ से लूं? आर्यन ने सवालिया नजरों से अयात को देखा। बस मंजर में हादी अब एक के बाद एक घड़ी चेक कर रहा था। इसके जूतों के साथ क्या किया है तुमने? छुपा दिए थे बस। अयात ने गहरी सांस ली। नीचे रखे होंगे वो। आर्यन सर हिलाता जूतों की तलाश में निकल पड़ा। अयात लंदन से जो घड़ी लाए थे सिल्वर कलर की, वो कहाँ है? हादी ने मुड़कर उसे देखा। नीचे दराज में। कुछ मेरे लिए भी छोड़ दे भाई। उसके मासूमियत से कहने पर उर्वा की हंसी छूटी थी। हादी उसे नजरअंदाज करता घड़ी तलाश करने लगा। सुनो, अगर मैं ना आ पाऊं तो तुम बारातियों के साथ आ जाना, मेरा आना मुश्किल है। उसकी बात पर आर्यन और हादी के कहकहे बुलंद हुए थे। वो मुंह बसोरता छत को देखने लगा। आप ना आए तो नहीं आऊंगी, और यह भी मुमकिन है कि आप आए तब भी मैं ना आऊं। मेरा मूड नहीं बन रहा। अब फोन रख रही हूं मैं, अनादिया मुसलसल घूर रही है। खुदा हाफिज। साथ ही कॉल कट गई। उसने गहरी सांस लेकर फोन साइड पर रखा था। ये अंगूठी अच्छी लग रही है। आर्यन की बात पर वो तेजी से उठ बैठा था। वो साइड टेबल के पास खड़ा चांदी के रंग की प्लेटिनम रिंग को उलट पलट कर देख रहा था। वापस रख दो इसे, चलते फिरते नजर आओ अब। सख्त नजरों से उसे घूरते हुए कहा गया। बस इसे बख्श रहा हूँ क्योंकि ये वेडिंग रिंग है तुम्हारी। अब मुझे एक अदद घड़ी चाहिए, जूते भी मिल गए हैं। वो इत्मीनान से उसे देखते हुए कह रहा था। अब तुम्हारी घड़ी को क्या हो गया? उसने दांत पीसे। वो मैंने ली ही नहीं थी, सोचा तुम कब काम आओगे। मुस्कुराकर कहता वो उसे तपा गया था। आर्यन, ये वाली ले लो, अच्छी लग रही है। हादी ने एक घड़ी उसकी तरफ बढ़ाई। अयाद ने सदमे से उसे देखा। ये घड़ी वो खास तौर पर आज के लिए लाया था, और ये भी हाथ से निकल गई थी। हाँ, प्यारी लग रही है। तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं करूंगा, दोस्त की चीजों पर पूरा हक होता है। अच्छा। उसने झुककर बेड से अपने कपड़े उठाए और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। हादी भाई, आदि आबी, आप तैयार हो गए दोनों? इबाद ने कमरे के दरवाजे से सर निकाला। बिल्कुल, मैं रेडी हूँ। हादी मुस्कुराया। खाकी रंग के डिनर सूट में मलबूस बालों को जल से सेट किए, कलाई पर स्याह घड़ी बांधे वो तैयार पुरकशिश लग रहा था। इबाद की नजरें उससे फिसलती अयाद पर जा टिकी, जो आम से होलिये में मुंह बनाए बैठा था। आप अभी तक तैयार नहीं हुए? बाबा जाने की तैयारी में हैं बस। इबाद की बात पर वो मगमूम सा मुस्कुरा दिया। तुम लोग चले जाओ, मैं यहीं रुक जाता हूँ। उसके अंदाज में मासूमियत ही मासूमियत थी। अंदर दाखिल होते साद, उमर और हसान को हकीकतन उस पर तरस आया था, और यह मासूमियत उस वक्त दूर कहीं जाकर बैठी थी जब आर्यन हसान के लिए एक बार फिर उसके वार्डरोब में जा घुसा था, जिसके नतीजे में वो पांचों धक्के देकर कमरे से निकाल दिए गए थे। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं आदि, इनकी हिफाजत के लिए जान लगानी पड़ती है। एक लड़ी की तरह होते हैं ये, जिन्हें सख्ती से पकड़ोगे तो लड़ी टूट जाए, और ढीली छोड़ोगे तो लड़ी हाथ से छूट जाएगी। हमारा हमसफर बिल्कुल वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं। कहीं ना कोई खामी सब में होती है। यहाँ तुम कंप्रोमाइज करोगे जैसे वो करेगी, क्योंकि बिल्कुल परफेक्ट तुम भी नहीं हो। समझ रहे हो ना? पुरुमीद नजरों से उसे देखा गया। वो मुस्कुराकर सर हिला गया। वो अभी नहाकर निकला था, बाल भीग कर मजीद स्याह हो गए थे। अनीका ने हाथ बढ़ाकर उसके बालों में हाथ चलाकर पानी की बूंदें गिराई थी। जहां तुम्हें परेशानी हो वहां अपने बाबा की राह इख्तियार कर लेना। वो एक आइडियल हमसफर थे, तुम जानते हो।
اس نے سر ہلا دیا۔ اس تھے کو ہے میں بدل دینا۔ انیکا نے رک کر اسے دیکھا تھا اور کئی پل دیکھتی رہی۔ میں چاہتی ہوں تم فی الحال اس بارے میں مت سوچو، آج تمہارا دن ہے۔ اس نے گہری سانس لی اور ایک بار پھر سر ہلا دیا۔ خوش رہو۔ انہوں نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ، اب سب انتظار میں ہیں۔ وہ اسے تاکید کرتی کمرہ سمیٹنے لگی۔ وہ اپنے بال خشک کرنے لگا۔ کچھ ہی دیر بعد کمرہ سمٹ چکا تھا اور وہ تقریباً تیار تھا۔ پرفیوم چھڑک کر اس نے گھڑی اٹھائی۔ میں پہنا دوں؟ عقب سے آتی آواز پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ تم نہ آتی تو میں آ جاتا، مسکراتے ہوئے کہہ کر وہ پلٹا تھا۔ نظر بھر کر اسے دیکھا۔ گلابی رنگ کی ٹخنوں کو چھوٹی فراق پہنے مکمل تیار، وہ ہمیشہ کی طرح معصوم اور دلکش لگ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ایاد کے ہاتھ سے گھڑی لی تھی۔ اچھی لگ رہی ہو، وہ مسکرا دی۔ آپ بھی۔ گھڑی اس کی کلائی میں باندھ کر اس نے پیچھے ہٹ کر اسے دیکھا۔ بھول تو نہیں جائیں گے نا؟ شرارت سے پوچھا گیا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، وہ بھی شریر ہوا۔ آپ بھی؟ محمل نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے خود سے لگا گیا تھا۔ کوئی جینا کیسے بھول سکتا ہے عزیزم؟ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ ایاد نے رک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، بس اب کچھ الفاظ بچا کر رکھیں، آگے کام آئیں گے۔ ایاد نے مسکراہٹ دبا کر اسے دیکھا۔ میرے الفاظ میری محبت کی عکاسی کرتے ہیں اور میری محبت کا پیمانہ سمندر ہے، کبھی کم نہیں پڑے گی۔ آپ سے جیتنا مشکل ہے، وہ مسکرا دی۔ جو آپ کی محبت میں ہار گئے ہیں ان سے جیتنا چاہتی ہیں بجم؟ وہ کھل کر مسکرایا۔ آپ بھی؟ وہ کچھ کہہ نہیں سکی تھی۔ لاڈ ہو گیا ہے تو اب چلیں؟ انیکا نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ آپ دونوں جائیں، میں بس ابھی آیا۔ محمل اور انیکا اسے جلدی کرنے کی تاکید کر کے باہر کی طرف بڑھ گئیں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر مڑ کر آئینے کے سامنے کھڑا ہوا۔ نگاہیں اپنی آنکھوں پر جا ٹکی، نیلی مسکراتی آنکھیں۔ کہاں رہ گیا ہے یہ لڑکا؟ اتنی دیر کون لگاتا ہے بھائی؟ صوفے پر بیٹھے حارث بیزار ہوئے۔ سرمئی رنگ کے کوٹ پینٹ میں ملبوس وہ ہمیشہ کی طرح پروقار اور وجیح لگ رہے تھے۔ انکل پتہ کروائیں کہیں لڑکا بھاگ تو نہیں گیا؟ داؤد نے چائے کا گھونٹ حلق میں اتارتے ہوئے کہا۔ ویسے میں نے پڑھا تھا اخبار میں، لڑکا شادی والے دن گھر سے بھاگ گیا۔ باپ کا سر شرم سے جھک گیا۔ باپ کا کہنا تھا کہ لڑکا کافی عرصے سے پیسے اکٹھے کر رہا تھا اور اب سب کچھ لے کر فرار ہو گیا ہے۔ باپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہے۔ کون جانے ایاد نے بھی وہ خبر پڑھی ہو۔ ہادی کے مصنوعی سنجیدگی سے کہنے پر وہ سب اس کی ایکٹنگ پر اش اش کر اٹھے تھے۔ میری بات سنو ہادی، اگر ایسا کچھ ہوا نا تو دونوں خاندانوں میں جنگ چھڑ جانی ہے، پہلے ہی بتا رہا ہوں۔ آریان نے مصنوعی رعب جھاڑا۔ اب حسان کی باری تھی۔ اور میں نے سنا ہے کہ دو خاندانوں میں اگر جنگ چھڑ جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ ہمارے گاؤں میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہنے والے مکین اپنے وقت میں محلوں میں رہتے تھے، مگر خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے غربت کا شکار ہو گئے۔ سب کی نظریں اب ساتھ پر ٹکی۔ اگر خاندانی جھگڑوں پر مبنی کوئی کیس عدالت میں آ جائے تو رہی صحیح کسر عدالت پوری کر دیتی ہے۔ اگر ایک بندے نے کیس کیا ہے تو اس کی نسل میں اس کا کوئی پڑپوتا بھی اپنے پردادا کے لیے عدالت کے چکر کاٹ کاٹ کر زندگی گنوا بیٹھتا ہے۔ حارث نے لب کچلے تھے، نظریں اب عمر پر ٹکی، گویا اس کی رائے جاننا چاہی۔ صرف یہی نہیں، میرے کلینک میں 2 بندے آئے تھے جو مکمل پاگل تھے اور وجہ خاندانی جھگڑے تھے جنہوں نے انسانی نفسیات کو تباہ کر دیا تھا۔ حارث کو ایک اور بھیانک پہلو دکھایا گیا۔ تو سوچیں چاچو، اگر ایاد سچ میں بھاگ گیا تو؟ ہادی آگے ہوا۔ نالائق سے اس حرکت کی امید تو نہیں ہے ویسے۔ حارث نے پہلو بدلا۔ آج کل کی نوجوان نسل پوری کامیابی کے ساتھ والدین کی امیدوں پر پانی پھیر رہی ہے انکل، داؤد نے سنجیدگی سے کہا۔ حسان بیٹا دیکھ کر آنا اس نالائق کو۔ حارث نے تفکر سے حسان کو دیکھا۔ میں ضرور جاتا انکل، لیکن اگر ایاد سچ میں بھاگ گیا ہے تو نام مجھ پر آئے گا کہ میں بھگا کر آیا ہوں۔ آپ یہ کام عمر کو دے دیں۔ میں بھی اس کام سے پیچھے ہٹنا بہتر سمجھوں گا، وہ خفیف سا مسکرایا۔ میرے بیوی بچے ہیں، آپ جانتے ہیں میں یہ رسک نہیں لے سکتا۔ سعد بھی پیچھے ہٹا۔ میں بھی اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا انکل۔ آریان نے بھی ہاتھ اٹھا لیے۔ تم لوگ کسی کام کے نہیں ہو، خود ہی دیکھاتا ہوں میں۔ وہ دانت پیستے صوفے سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ چاچو اگر وہ سچ میں نہ ہوا کمرے میں تو صدمے سے آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا، ممکن ہے آپ کی موت ہو جائے، اور اگر ایاد بھاگتے ہوئے کسی حادثے کا شکار ہو گیا تو اپنے پوتے پوتیوں کو دیکھنے والا آپ کا خواب بس خواب ہی رہ جائے گا۔ میری ماں نے تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیں۔ ہادی نے نہایت سمجھداری سے انہیں ان کا تاریک مستقبل قبر میں دکھایا۔ بابا آبی کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، جب تک آپ سامان گاڑی میں رکھوا دیں۔ محمل اپنی فراق سنبھالتی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اس نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا تھا جو نہایت معصومیت سے ان کی گیم خراب کر گئی تھی۔ میں نے کہا تھا نا وہ نالائق ایسا نہیں کر سکتا۔ حارث کھل کر مسکرائے، وہ سب بس انہیں دیکھ کر رہ گئے۔ میں ایاد افندی، حارث افندی کا بیٹا۔ زندگی کی بساط پر میں شاہ ہوں، میں گر کر اٹھنے والوں میں سے ہوں۔
जैसे एक शाह होता है। आईने में अपनी आंखों को तकते हुए उसने कोट पहना, स्याह पैंट पर सफेद शर्ट पहने, खाकी रंग का कोट जिस पर स्याह और सुर्ख रंग से लकीरें खींची थी, नाक पर चश्मा टिकाए, कलाई पर घड़ी बांधे और मुकम्मल तैयार था। मेरी जिंदगी में ऐसे मौका भी आए हैं जब मैं एक जिद्दी बच्चा बन गया था। सालों मैंने अपनी जिद के पूरे होने का इंतजार किया है और आज मैं इस मुकाम पर हूँ कि मेरी जिद के आगे हथियार गिरा दिए गए। मैं जिंदगी की बिसात पर शाह ठहरा। वो अब नजरें सामने टिकाए सीढ़ियां उतर रहा था। वो लाउंज में दाखिल हुआ तो सबकी नजरें उस पर टिकी थी। काफी खुशकिस्मत हूँ, मुझसे मोहब्बत की जाती है और मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत की उम्मीद बांधी जाती है। जिद में आ जाऊं तो लापरवाह भी बन जाता हूँ और सितमगर भी। नफरत भी टूट कर की है और मोहब्बत में भी हर हद से गुजरा हूँ। कोई पाबंदी नहीं क्योंकि मैं शाह हूँ। वो सबके हमरा बागीचे में दाखिल हुआ था जहाँ तकरीब का इंतजाम किया गया था। उसके दाएं जानिब हादी था, बाएं जानिब मोहम्मद, आगे इबाद और पीछे हारिस। हादी के दाएं तरफ आर्यान, हसान और शहरयार, मोहम्मद की दाएं जानिब साद, उमर और दाऊद। जीत मेरा मुकद्दर है मगर मैं हारा भी हूँ और लड़खड़ा कर गिरा भी हूँ। सख्त आजमाइशों से गुजरा भी हूँ और जिंदगी की हर आसाइश भी देखी है मैंने। मेरी ताजपोशी भी की गई है, मुझे दुत्कारा भी गया है। मैंने जिंदगी का हर वो पहलू देखा है जो एक शाह देखता है और फिर मैंने जाना कि मैं शाह हूँ। अफंदी साहब की बात को नजरअंदाज करें, मैं किसी सुल्तान का वारिस नहीं हूँ, मैं खुद सुल्तान हूँ। मुझे सुल्तान से दबने वाले शहजादे नहीं पसंद। लड़कियों के घेरे में उसने उन दोनों को आते देखा था, खाकी रंग के कामदार लिबास में मौजूद अनादिया लगारी और उसके बराबर में सफेद रंग के लिबास में मौजूद लाल दुपट्टा सर पर टिकाए उर्वा लगारी। कुछ लम्हों के वक्फे से उसने किसी को अपने बराबर में बैठते महसूस किया था। लबों पर मचलती मुस्कुराहट गहरी हुई थी। अगर ये कह दो बगैर मेरे नहीं गुजारा तो मैं तुम्हारा, या इस पे मबनी कोई तासुर कोई इशारा तो मैं तुम्हारा। गरूर परवर अना का मालिक, कुछ इस तरह के हैं नाम मेरे, मगर कसम से जो तुमने एक नाम भी पुकारा तो मैं तुम्हारा। तुम अपनी शर्तों पे खेल खेलो, मैं जैसे चाहूं लगाऊं बाजी। अगर मैं जीता तो तुम हो मेरी, अगर मैं हारा तो मैं तुम्हारा। तुम्हारा आशिक, तुम्हारा मुखलिस, तुम्हारा साथी, तुम्हारा अपना। रहा ना इनमें जब कोई तो मैं तुम्हारा तो मैं तुम्हारा। ये किस पे तावीज कर रहे हो, ये किसको पाने के हैं वजीफे। तमाम छोड़ो जब एक कर लो इस्तखारा तो मैं तुम्हारा। कोई चुपके से जिंदगी में आता है और दिल पर विराजमान हो जाता है। शाह यहाँ हारते हैं, मैं भी हार गया। मोहब्बत हार नहीं होती, मोहब्बत अपना सब कुछ हार देना होती है। मैं मोहब्बत को जीत गया, मोहब्बत ने मुझे हरा दिया। हार और जीत की इस जंग में कोई मेरा हमसफर बन गया। उसने नजरें तिरछी की। हादी अनादिया को अंगूठी पहना रहा था। वो उठ खड़ा हुआ, मुस्कुराते हुए उसे देखा। रस्म के बाद हादी उसकी तरफ मतवज्जा हुआ। उसे खुद को तख्ता पाकर सवालिया नजरों से उसे देखा। वो मुस्कुराया, फिर लबों को जुम्बिश दी। तुम्हारे अरमान पूरे होने पर तुम्हें दिल की गहराइयों से मुबारक। हादी ने ताजीमन सर झुकाया। उसे अपने पीछे शोर उठता महसूस हुआ था। माथे पर बल डाले वो पीछे मुड़ा। लड़की क्या हो गया है, सब देख रहे हैं। नूरुल ऐन परेशानी से उसे देख रही थी। वो होंठ पीछे आंसू जब्त करने की कोशिशों में थी। गोद में रखे हाथ वो रगड़ रगड़ कर लाल कर चुकी थी। सामने से अनीका आती दिखाई दी थी। क्या हो गया है बेटे, अपने घर जाते हुए भी कोई रोता है भला? उसके आंसू पहुंचकर धीरे से उसके बालों पर अपने लब रखे थे। वो नम आंखों से हल्का सा हंस दी थी। वो भी जेरे लब मुस्कुरा दिया। रोना नहीं है बल्कि आदि को रुलाना है, ठीक? रोते रोते हंस देना और हंसते हंसते रो देना। मैं कैसे कहूँ जनाब, आपकी हर अदा लाजवाब है। हादी ने अपनी शायरी समेत टांग अड़ाना जरूरी समझा था। अयाद ने मुड़कर उसे घूरा था। ये शेर मेरे लिए कहना था हादी के बच्चे। अनादिया ने उसे घूरी से नवाजा। तुम रोती ही नहीं हो, उसने कंधे उचका दिए। वो मुस्कुराते हुए पलट गया। कुछ देर बाद वो वापस अपनी जगह पर बैठ रहे थे। जिंदगी में गम ना आए तो खुशी की आमद का एहसास ही नहीं होता। स्याही ना फैले तो कोसे कजा के रंग दिखाई ही नहीं देते। जब तक आंखों से आंसू न छलके तब तक लबों पर मचलती तबस्सुम खूबसूरत ही नहीं लगती। क्या मैं आपके आंसुओं पर यकीन कर लूं जो कह रही हैं कि आप मेरे साथ चल रही हैं? मुस्कुराते हुए पूछा गया। वो चंद लम्हे खामोश रही थी। ये आंसू इल्तिजा भी तो हो सकते हैं, मुझे यहीं रहना है। आवाज नम थी। हो सकते हैं लेकिन है नहीं, मैं यकीन से कह सकता हूँ। वो खुलकर मुस्कुराया। उसने निगाहें तिरछी करके खफा खफा सी निगाहों से उसे देखा। आज नाक पर चश्मा नहीं टिका था, आज आंखों पर पहरेदार नहीं बिठाए गए थे। पता है ना, कोई मेरी नहीं सुनेगा। वो हंस दिया था। रात गहरी होने लगी थी। रोशन चांद की रोशनी मांद पड़ रही थी।
सितारों की टिमटिमाहट खुशी और गम की तरह थी, बस एक लम्हे के लिए। उसकी शादी पर सब आए थे, गांव से सकीना और रशीद के अब्बा भी, हत्ता कि आयशा के हमरा शानजे, दानियाल और बाकी बच्चे भी, उसामा का दोस्त उबैद भी और हादी की क्लास का वो लंबी नाक वाला लड़का भी। आदिल भी आया था अपने खड़ूस पास की शादी में। गहरी होती रात को देखकर रुखसती का शोर उठा था, दिल मगमूम हुए थे, आंखें नम थी, लबों पर मुस्कुराहट थी। वो स्टेज पर खड़ा था जब हादी उसके पास आया। दाऊद, आर्यान, हसान, उमर, उसामा, इबाद और बाकी सभी वहीं आ गए। यार अयाद, एक आमद हुई है बड़ी जोर से, हादी ने गला खंगार कर कहा। इरशाद, हर खुशी को तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे भी तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी है या दो चार झूठ और बोल दूं। सबकी हंसी छूटी थी। उसने दांत पीसकर हादी को देखा था। मेज पर रखा ग्लास उठाकर उसकी तरफ उल्टा था। हादी फौरन एक तरफ हुआ, नतीजतन ग्लास में मौजूद पानी हसान पर गिरा था। साले, मेरे साथ कौन सी दुश्मनी निभाई है? उसने अपने भीगे कोट को देखकर मुंह बसोरा। हादी ने आगे बढ़कर उसके कंधे पर बाजू रखा। इस खुशी में खास तुम्हारे लिए एक शेर। वो संजीदा हुआ। इरशाद, मेरे दोस्तों ने मुझे कर दिया बर्बाद, पाक सरजमीन शादबाद। सब हंस दिए थे। हसान ने मुंह के जाविये बिगाड़े थे। देख हादी, आर्यन संजीदगी से कहता आगे आया, हसान जो है ना, जिगर है मेरा, और मुझे अपने जिगर का बिल्कुल ख्याल नहीं, तो तू इसकी बेइज्जती जारी रख। आर्यन ने उसका कंधा थपथपाया। अबे साले, तेरी तो। हसान उसे मारने के लिए उसकी तरफ लपका। लड़कों, अपनी जंग बाद में जारी रखना, फिलहाल निकलना है हमें। हारिस की आवाज पर सबने मुड़कर उन्हें देखा था। हजरत तशरीफ ले जाइए। हादी के कहने पर वो कान की लोक जाता स्टेज से उतरा था। उर्वा झुककर अलीशा बेगम से पेशानी पर बोसा ले रही थी। कुछ देर बाद वो सब आगे पीछे वहां से निकल रहे थे। सबसे आगे हादी और अनादिया, उनके पीछे अयाद और उर्वा। आर्या ने मिशल को भी दावत दी थी, मगर वो उसे घूर कर मुड़ गई थी। मेज के गिर्द रखी कुर्सियों पर बैठी सकीना ने नजर भरकर उन्हें देखा था। सब यहाँ थे, वो भी यहाँ थी। जिंदगी तो फिर जिंदगी है रशीद के अब्बा, अपनों के साथ या अपनों के बिना जीना तो है, रंगीन हो या बेरंग, सांस तो लेनी है। वो सरगोशी कई पल खाली बागीचे में गूंजती रही थी। वो सब गाड़ियों में बैठने लगे थे। उसने मुड़कर अपना हाथ उर्वा के आगे किया था। उर्वा ने रुककर उसे देखा, फिर उसके हाथ पर अपना हाथ रखा था। उन सबको वो मिला था जिसके वो हकदार थे। हवेली का गेट खुल चुका था और कई गाड़ियां आगे पीछे बाहर निकली थी। अंधेरे में घिरी सड़क एकदम रोशन हुई थी। चांद की रोशनी एक बार फिर मध्यम पड़ी थी। तारे टिमटिमाए थे। अंधेरे में डूबती सड़क खामोशी से दूर जाती गाड़ियों को देख रही थी। वो सब जा चुके थे। वो कोसे कजा के रंगों जैसे लोग, वो जा चुके हैं। खत्म शुद्ध। जी तो डियर लिसनर्स, यहाँ होता है इस कहानी का इख्तिताम। और जनाब, आप सबको कहानी कैसी लगी इसके बारे में आप सब जरूर बताइएगा। मुझे कहानी कैसी लगी, तो कहानी तो बहुत अच्छी थी, नो डाउट। काफी चुलबुली सी तहरीर थी, संजीदगी भी थी, हंसी भी थी, मजा भी था। तो एक भरपूर जो फैमिली लाइफ होती है वो बहुत अच्छे से दिखाई गई थी। लेकिन कहानी को बिला वजह जो है ना, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा घसीटा गया। यानी ये कहानी जल्दी खत्म हो सकती थी, लेकिन इसे ना बिला वजह ही इतना तवील किया गया। और दूसरी बात ये कि हारिस और उसकी वालदा की जो अलहदगी थी उसको बहुत ज्यादा हाईलाइट जो है वो किया गया था, हालांकि वो वजह इतनी खास नहीं थी। उन्हें चाहिए था कि कोई ठोस वजह, कोई ठोस रीजन होती उनकी आपस की अलहदगी की। उसके जो भाई थे हैदर, यानी साद के जो वालिद थे, वो जज्बाती जरूर हो गए थे, लेकिन उन्हें थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए था। इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था अयाद की वालिदा को। ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया था, वो अलहदगी कर लेती, कुछ अरसे के लिए अलग हो जाती। खुला लेना या डिवोर्स लेना जो है वो बिल्कुल मुनासिब बात नहीं थी। कहीं से नहीं खुला कि वो दाऊद ने क्या किया था। अगर दाऊद की वजह से वो सारा सिलसिला हुआ था, तो फिर हैदर साहब और दाऊद के दरमियान इतनी दोस्ती क्यों रही आगे मजीद, कि उन्होंने बाकायदा रिश्ता भी दे दिया दाऊद को। और फिर उन्होंने उनसे रिश्ता, उनसे शादी क्यों कर ली एक ऐसे शख्स से जिनकी वजह से सारा सीन क्रिएट हुआ था। चले वो हकायक भी हो सकता है कि बाद में खुले हों, फौरी तौर पर ना खुले हों, लेकिन ये मुझे उनका एक जज्बाती फैसला लगा। मतलब वो कोई गुंडा या क्रिमिनल टाइप इंसान तो नहीं थे साद के वालिद, कि उनसे खौफजदा हुआ जाता कि वो अयाद को, उसके वालिद को परेशान करेंगे, उन्हें तंग करेंगे। वो शादीशुदा थी, अपनी जिंदगी की मालिक थी, और फिर उनके वालिद भी हयात थे। चले वालदा का इंतकाल हो गया था, कोई बात नहीं, वालिद तो हयात थे, तो क्या उन्होंने भी नहीं रोका उन्हें इतना बड़ा कदम उठाने से? और वो उससे इतना क्यों खौफजदा थी अपने भाई से, उनसे इतना क्यों डरी थी?
یا کیوں ان کی بات مان لی تھی کہ اپنے بچے، اپنا شوہر اور اپنی اتنی آئیڈیل لائف کو جو ہے انہوں نے برباد کر دیا صرف اپنے بھائی کی ضد میں، اپنی اولاد کو مرتے ہوئے بستر مرگ پر چھوڑ دیا صرف اپنے بھائی کی ضد میں۔ وہ کیا کر لیتے؟ مطلب وہ ایسے کیا کوئی کرمنل تو نہیں تھے نا، مطلب ایک انسان تھے جو وقتی طور پر جذباتی تھا، غصے میں تھا، تو وہ اس طرح کا ریئیکٹ کر رہا تھا۔ اسے بعد میں سمجھایا جا سکتا تھا، منایا جا سکتا تھا، تھوڑا وقت لیا جا سکتا تھا سب چیزوں کو سیٹل کرنے کے لیے۔ تو مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگا کہ انہوں نے جو ہے خود وہ کھلا لی اپنے ہسبینڈ سے اور اپنی اچھی بھلی زندگی جو ہے وہ برباد کر لی۔ اس کے بعد ان سب کا جو ملنا تھا اس کو بہت ڈیلے کیا گیا، مطلب ایاد کا لندن چلے جانا، جب اس نے اپنی والدہ کو پاکستان میں دیکھ لیا تھا، وہ آئی تھی، تو اسے پھر لندن جانے کی کیا ضرورت تھی؟ پھر ایاد کا بیہیویئر جو تھا نا وہ بھی بہت، کہاں وہ اتنا محبت کرنے والا، اتنا جو ہے وہ سب کا خیال کرنے والا ہے، اپنی بہن سے، اپنے والد سے کرتا ہے، وہ سب سے رابطہ کر رہا ہے، تو پھر یہ ایک بات کہ بھی عروہ اس سے کلوز نہ ہو جائے، اس سے اٹیچ نہ ہو جائے، اس سے رابطہ نہ کرنا، اگر صرف منگنی ہوتی تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اوائڈ کرے زیادہ تعلق کو بڑھانے کو، وہ اس چیز کو اوائڈ کرے کہ ہو سکتا ہے کل کو میں یہ رشتہ قائم نہ رکھوں تو اس لڑکی کو جو ہے خود سے اٹیچ بھی نہ کروں، اس کی نیت نہ ہوتی رشتہ نبھانے کی، تو یہ باتیں سمجھ میں آتی۔ یار نکاح ہوا ہے، وہ بیوی ہے، وہ پورے حقوق رکھتی ہے، اس کو اس طرح سے اوائڈ کرنا، اس کو نظر انداز کرنا وہ بالکل غلط بات تھی۔ تو ایاد کا عروہ کے ساتھ جو رویہ رہا وہ بالکل بھی مجھے اچھا نہیں لگا، اور وہ بالکل لاجیکل بھی نہیں ہے۔ مطلب آپ سارے رشتے نبھا رہے ہو، سب کا خیال کر رہے ہو، تو وہ ایک لڑکی جو آپ سے جڑ گئی ہے اس کو یقین چاہیے، اعتبار چاہیے، اور آپ اس کو جو ہے نا ایسے کشمکش میں گھما پھرا کے اس کو رکھو، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ چیز مجھے بالکل پسند نہیں آئی اس کی۔ پھر اس کے بعد اس نے اپنے والد کے ساتھ کافی جو ہے اس نے زیادتی کی ہے، مطلب اسے سمجھنا چاہیے اپنے والد کے جذبات کو بھی۔ اب وہ آ کے ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اس کی والدہ سے دوبارہ شادی کر لیں، تو وہ واقعی حارث نے فوری طور پر جو ہے انکار کر دیا، وہ بھی اچھا لگا مجھے۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، ایک انسان آپ پر بھروسہ نہ کرے، وہ یہ سمجھے ہی نہ کہ آپ حالات ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ کا ہم سفر ہو، آپ کے دکھ سکھ کا ساتھی، اور وہ آپ کو بیچ راہ میں چھوڑ کر چلا جائے، کس لیے؟ بھائی کے لیے، ایک جذباتی بھائی جو ایک جذبات میں غصے میں آ کے فیصلہ کر رہا ہے۔ اسے بھی تو سوچنا چاہیے تھا نا کہ میری بہن جو رہ رہی ہے اس شخص کے ساتھ، وہ اس کا شوہر ہے، اور اگر وہ ماں کا قاتل ہوتا تو وہ اس کے ساتھ کیوں رہتی، کیوں ترجیح دیتی؟ وہ بالکل ایک بہت ہی زیادہ نا جذباتی سا فیصلہ تھا، اتنی بڑی کوئی ٹھوس ریزن نہیں تھی اس سب کے پیچھے۔ مجھے یہ ریزن جو ہے نا یہ غلط لگی کہ یہ کوئی اتنا بڑا مدعا نہیں تھا جس کے پیچھے رشتے جو ہے وہ سارے ٹوٹ پھوٹ جاتے، خراب ہو جاتے۔ اس کو سسپینس میں اتنا رکھا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی بات ہوگی، کتنی بڑی وجہ ہوگی، لیکن ہوا کچھ ایسا کہ جیسے کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، تو وہ کوئی اتنا بڑا مدعا نہیں تھا، اتنی بڑی وجہ نہیں تھی جس کے پیچھے جو ہے یہ اتنا سارا بھونچال آیا ان کی زندگی میں۔ پھر آریان کا جو بھی مشن تھا اس میں مجھے یہ بہت عجیب لگا، مطلب اس لڑکی کی کوئی ٹریننگ، کوئی بھی، وہ ظاہر ہے وہ ایج میں کم تھی ان لوگوں سے، اس کی کوئی ٹریننگ، کوئی بھی اس کا پس منظر نہیں بتایا گیا، بس اسے کہانی میں شامل کر دیا گیا مشل کو، اور پھر وہ انہیں کمانڈ کر رہی ہے۔ اور پھر یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ 3 سے 4 نوجوان لڑکوں کے ساتھ وہ اکیلی فیلڈ میں جو ہے وہ اکیلی لڑکی ہے، اور وہ ایز انہیں کمانڈ کر رہی ہے، ان کی کمانڈر ہے وہ۔ کہیں سے اس کی کوئی بھی پوسٹ، کوئی بھی اس کا حدود اربہ کچھ بھی نہیں بتایا گیا، بس وہ ایک کرنل کی بیٹی ہے اور اس کو ایسے مشن میں شامل کر دیا گیا، اور پھر وہ ان کو ایز اے کمانڈر جو ہے وہ ان کو لیڈ کر رہی ہے۔ مطلب وہ نرم و نازک سی لڑکی، ٹھیک ہے ہوتی ہیں، آرمی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک عورت کے اندر اس طرح سے نہیں دیا جاتا ہے زیادہ تر، کیونکہ وہ جذباتی ہوتی ہیں اور قوت فیصلہ جو ہے وہ خواتین میں خاصی کم ہوتی ہے۔ چلیں وہ اس کی قابلیت ہوگی بھی، لیکن اس کو مینشن تو کہیں نہ کہیں کرنا چاہیے تھا نا کہ وہ اگر اتنی سٹرونگ تھی، اتنی قابل تھی، اس کا کہیں کوئی نام، کوئی اس کا پس منظر، کوئی اس کی ٹریننگ، کوئی اس کا عہدہ، کچھ تو ظاہر کیا جاتا، کچھ بھی واضح نہیں کیا گیا۔ اور 4 لڑکوں کے ساتھ اس کو اکیلے کہیں الگ گھر میں رہ سکتی تھی، کسی الگ جگہ پر رہ سکتی تھی، 4 اکیلے لڑکوں کے ساتھ اپنی جوان جہان بیٹی کو کون بھیج دیتا ہے یار؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ان کا جو بھی مشن رہا، کہیں نہیں بتایا گیا کہ وہ کون لوگ تھے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اس کے جو یاور جہانگیر تھا اس کا کیا تعلق تھا، کیوں قتل کیا گیا تھا، وہ ساری کیا وجوہات تھی، کن کن لوگوں کو شہید کیا گیا اور انہیں کیوں کیا گیا، ان سے کیا دشمنی تھی، کیا وجوہات تھی،
कुछ भी डिटेल से नहीं बताया गया। पूरी पूरी फैक्ट्री उड़ा दी यार, इतने लोग होते हैं वहाँ काम करने वाले, मुजरिमों को पकड़ा जाता है, उन्हें सजा दी जाती है, उन पर केस किया जाता है। ऐसे नहीं होता कि अंधाधुंध पूरी फैक्ट्री को उड़ा दिया जाए और तमाम लोगों को मार दिया जाए। क्या बात है, वहाँ कोई बेगुनाह नहीं थे, सारे मुजरिम थे, और अगर वो थे भी तो उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी कानूनी तरीके से। ये किसने कहा कि सब के सब जो है वो बॉम्ब के जरिए उड़ा दिए जाए? जो गिरफ्तार किए हैं उनसे क्या तफ्तीश हुई है, कौन सी पूछताछ की गई है, कौन लोग मुलविस थे? कोई तस्करा नहीं हुआ, कोई बात नहीं हुई, बस मिशन कर दिया गया। फिर राइटर को नाम नहीं मिले हैं अलग मुख्तलिफ रखने के लिए, उन्होंने इतना कंफ्यूज कर दिया नामों के हवाले से। उधर से नूरुलैन के हस्बैंड का नाम भी इबाद है, तो अयाद के छोटे भाई का नाम भी इबाद है। फिर एंड में उन्होंने वो आर्यन वाले नाम का भी घपला किया, बाद में आके वो पता नहीं कौन सी रिश्तेदार को निकाल कर कहा गया कि ये जी फलां की कब्र है और उनके नाम पर नाम रखा गया है। तो अलग अलग नाम नहीं रखे गए, नामों से कंफ्यूज किया गया इंतहाई हद तक। उसके अलावा जनाब आखिर में जो इंतहाई आर्यन ने चवल मारी कि अयाद को अपनी मोहब्बत के बारे में बता दिया जी, मुस्तकबिल में कोई परेशानी ना हो। कोई भी वाकिफ़ नहीं था, इवन कि उसने हसान को भी नहीं बताया था कि वो किससे मोहब्बत करता है, वो उर्वा है। फैमिली में भी किसी को नहीं पता, तो इस बात को पी जाना चाहिए था, बजाय ये कि उसकी रुखसती से कुछ दिन पहले वो अयाद को अपनी मोहब्बत के बारे में बता रहा है कि वो उर्वा को पसंद करता था। पूरी फैमिली में उसने किसी को नहीं बताया, अपने क्लोज़ फ्रेंड को उसने नहीं बताया, और अब उसका जो है बताना ये इंतहाई फजूल हरकत थी कि वो अयाद को ये बता रहा है कि वो उसकी बीवी से मोहब्बत करता रहा है। तो ये बहुत ही बुरी बात थी, उनकी बेतकल्लुफ़ी थी, कोई भी उसको ऑकवर्ड नहीं लेता। वो सब कज़न्स के साथ ऐसे ही बेतकल्लुफ़ रहा है, तो ये भी उसने इंतहाई फ़जूल हरकत की है। ये नहीं होना चाहिए था, अयाद से उसे बिल्कुल ज़िक्र नहीं करना चाहिए था कि वो उर्वा के लिए क्या फ़ीलिंग्स रखता था। ये बिल्कुल ही गलत बात थी। और बाकी सारी कहानी अच्छी थी, प्लॉट बहुत अच्छा था, उनकी आपस की बॉन्डिंग, एक दूसरे से दोस्ती, हंसी मजाक, वो सब बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ सीन ऐसे थे जो बिला वजह यानी डाले गए, जिन्होंने सिर्फ कहानी को तवील किया। और बहुत सारी कुछ डिटेल्स होती हैं जो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं, पता नहीं, लेकिन वो मैं रवानी में क्योंकि पढ़ती हूँ तो वो मैं शामिल कर जाती हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत इरिटेट करती हैं। मतलब उसने बालों को सेट किया, कंघी को ड्रेसिंग टेबल पर रखा, परफ्यूम उठाया, खुद पर परफ्यूम स्प्रे किया, फिर वॉलेट उठाया, चाबी उठाई, मोबाइल उठाया, और फिर वो बाहर निकल गया। मतलब यार इतना लंबा इस चीज़ को करने की क्या ज़रूरत है? एक इंसान बाहर जाएगा तो ज़ाहिर है अपनी वो सब चीज़ें लेकर ही जाएगा, लेकिन ये कुछ चीज़ें इतनी तफसील से बताई जाती हैं ना, इस तरह के कुछ मंज़र, कुछ सीन ऐसे तफसीली उसमें लिखे जाते हैं कि ज़ाहिर है मैं तो रवानी में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मैं वो पढ़ जाती हूँ, लेकिन वो मुझे इरिटेट बहुत करते हैं कि यार इस जुमले का यहाँ क्या मकसद था? क्यों इस तरह की डिटेल्स डाली जाती हैं? क्यों इस तरह की चीज़ें लिखी जाती हैं? गिलास उठाया, गिलास में पानी डाला और एक ही सांस में पी लिया। हाँ, किसी सिचुएशन में ऐसे जुमले लगते हैं, जैसे कोई इंसान बाहर से बहुत गर्मी में आया हाँफता हुआ, या कोई घबराहट में है, तो उस में चीज़ को बयान करने के लिए, कैफ़ियत को बयान करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। लेकिन आम तौर पर ये चीज़ें ज़रूरी नहीं होती हैं। कोई भी इंसान घर से बाहर जा रहा है, चाहे वो ऑफ़िस जाए, चाहे वो यूनिवर्सिटी जाए, वो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं, अहम होती हैं। तो इन चीज़ों को जो है वो शामिल नहीं करना चाहिए था। बाकी हाँ, कहानी मुझे अच्छी लगी, लेकिन इसको घसीटा गया है, थोड़ा तवील, इतनी तवील नहीं होनी थी, ये जल्दी निमट सकती थी, लेकिन वो उन सब के मिलने मिलाने को और उन चीज़ों को ना बहुत ही लंबा किया गया। और हाँ, हादी की शादी इतनी जल्दी क्या ज़रूरी थी? मतलब उसने 2 साल के लिए तो गया था अयाद, आ ही जाता वो वापस। इन्होंने हादी की शादी जो है वो उसके बगैर की, इतनी क्लोज़ उनकी जो है दोस्ती, इतना उनका भाईचारा, और उसके बगैर उसकी शादी कर देना, ये बिल्कुल ही गलत बात थी। क्यों, मतलब क्यों 1 साल रुका जा सकता था? क्या इसमें अफरा-तफरी थी? और फिर उर्वा आ रही है, जा रही है, मिल रही है, तो भई रुखसती करवाने में क्या एतराज़ है? रुखसती को इतना लंबा क्यों किया जा रहा है? क्यों खींचा जा रहा है? ऊपर से उनका वलीमा, जब उसके बगैर शादी हो गई तो वलीमा भी उसके बगैर कर लेते ना, क्या हर्ज था? 2-2 साल के बाद वलीमा हो रहा है। तो ये कुछ चीज़ें ना बहुत अजीब-सी लगी मुझे। ये तो था कहानी के हवाले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। ये सवाल हैं, ये थोड़ी-सी तनकीद है, इसमें कोई भी एतराज़ नहीं है। ज़ाहिर है राइटर की अपनी एक सोच, अपनी एक थिंकिंग है। उनके ज़हन में क्या है, हम उसको अप्रोच नहीं कर सकते। उन्होंने उस वक़्त क्या सोचते हुए, क्या समझते हुए कहानी लिखी, तो हम उस चीज़ को नहीं पहुँच सकते। इसी तरह हर किसी का अपना-अपना ज़हन होता है, अपनी-अपनी सोच होती है। तो ये मेरे ज़हन में आने वाले सवालात थे, ये मैंने जो महसूस किया, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, मेरे अपने जज़्बात, जो मैंने महसूस किया मैंने वो कहा। आप सब ने क्या महसूस किया? आप सबका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है?
آپ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسی لگی۔ اور یہ بالکل بھی رائٹر کی ذات پر تنقید نہیں ہے، رائٹر پر اعتراض نہیں ہے بالکل بھی۔ یہ ہر انسان جب کہانی کوئی بھی ریڈ کرتا ہے تو اس کے حوالے سے اسے کچھ اعتراضات بھی ہوتے ہیں، وہ کہیں پر رائٹر سے متفق ہوتا ہے، کہیں پر نہیں ہوتا ہے، تو یہ بالکل ایک اسی طرح سے ایک اختلاف رائے ہے، اس سے کسی کی بھی ذات پر یہ کوئی تنقید نہیں ہے۔ تو آپ سب بھی کہانی کے حوالے سے کہانی کے بارے میں بات کیجیے گا، کامنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کو کہانی کیسے لگی، آپ میری باتوں سے کس حد تک متفق ہیں، کس بات سے آپ نامتفق ہیں مجھ سے یا رائٹر سے، تو یہ کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، لیکن تھوڑا سا میں بریک لوں گی، ریسٹ کروں گی۔ اس کے بعد بہت ساری فرمائشیں جو ہیں وہ پینڈنگ ہیں، تو ان میں سے دیکھوں گی کہ کون سا ناول جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیے۔ سٹوری مکمل تو ریڈ نہیں کرتی، یہ تو میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں، پھر بھی میں کوشش کروں گی کہ اچھی کہانی کا انتخاب کر سکوں۔ تو انشاءاللہ بہت جلد نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک آپ سب اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔